Sadhika. I'm Radhika. Hello, Archika. Welcome to the South Delhi Girls podcast. Thank you. Thank you so much. Okay, so for all our viewers who don't know who you are yet, why don't you give us a quick, nice introduction about yourself? Cool. So, very unconventional for this industry. I'll start with what I'm doing currently, which is tarot reading, numerology, a lot of healing work. So, I do candle healing, I do Reiki healing, Lama Fera, Hunkara with Halim. And I'm also certified image consultant, certified soft skills trainer. So, that's my other business. Going back, qualification wise, I went to CBS, Delhi University, then did my MBA from IIM Indore, worked at PCG as a management consultant, then at EY India, only to realize I'm not making that much of an impact and whatever, right? Then started with my first business, then came on to this because I thought there was a gap in the market. Talking purely from management consulting point of view, and also to realize that these tools have a lot of value to offer. It's just that there's not the right kind of awareness. So yeah, that is what got me here, and I'm absolutely loving the field. So, how long have you been doing this? Professionally, I've been doing it for the last 2 years, and if you talk about like spirituality or healing, I've been doing it since 2011. So I never thought I'll take it up professionally and whatever, but I think it's very right for any occult science person. It's usually said that, the science chooses you. So when the time is right, it's then that you really learn all of these modalities. And to practice professionally, I think I count myself lucky. So I've been doing it for the last 2 years professionally. Otherwise, for family, loved ones, for myself, it's been happening since 2011. So, who introduced you? Like, how did this start with you? Okay, so my mom actually signed me up for a tarot reading course during COVID. So Reiki I knew since EY days, because in corporates there was a lot of gossip and whatever, and because I was from DU, there was a lot of hype about Reiki. I couldn't find the right master back then, so it was there at the back of my mind. So I found one during 2019. That is when I did my Reiki first level. 2011 I started with like Art of Living, then did Buddhism. After that Namyo Renge-kyo chanting. It's all DU. So that, and then post that 2020 I was signed up for a course. My mom, she's like, I am learning numerology, you will do very well in tarot, मैंने अभी reading ली है, so इससे सीख लो. So I did like a 1 month one-on-one course, but there was a lot of Hindi involved. So I was like, no dude, I can't do this, but I was very intrigued. And tarot is a very intuitive tool. So you read it more out of intuition, all of that. So I was very intrigued. And then I sort of found a lot of mentors post that. And I'm still learning, like I sign up for a lot of courses. So I think that's the beauty of these modalities. It's never enough. So it's usually said that, one life is also not enough. And knowledge is the only thing that you carry solo. I don't want to sound very sadhu type, but this is what is said about this modality. That anything that you choose in occult science, whether it's astrology, numerology, one, you need to have a past life connection. So probably I've done it in my past life, of course. And I'm lucky enough to do it at a very young age now. And then the introduction just sort of happened and the path opened up. Especially after COVID, a lot of people have come up. So I think COVID is to be blamed, and my mom, of course, for sure. So yeah, Reiki I did before that. Okay, so fun fact, आप मेरे एक्सप्लोर पे बहुत ज़्यादा आते हो Okay. और मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी हुई है. Oh, So I was saving this कि मैं पहले नहीं बताऊंगी. Yeah. Yes, That's so my expression. I really believe in numerology, not astrology so much, but I don't know because एक interest है अजीब सा, and what I like about you is that it's whatever you say very straightforward, right? So it could be good, it could be bad, just very, very straightforward. So I've been watching a lot of your reels, which is why I'm very, very excited for this episode. Ah, lovely. Yeah, and what I really like is, so you're like a highly qualified woman, right? And लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंधविश्वास से जोड़ते हैं. बिल्कुल. So when we have qualified, learned people practicing these things, it makes it credible, right? Because I've personally believed that इन चीज़ों के पीछे genuinely science होती है. कौन कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, किस डेट पे, किस टाइम पे पैदा हुआ. There's a lot of science behind it, Yes, right? because there has to be a reason why Ambanis are Ambanis and, those kids are born in that family. Yeah, absolutely. Right. So, आप बताओ कि what is the science behind this? And yeah, like how far, to what extent are these things accurate?
किस हद तक हम इन चीज़ों में विश्वास रखना चाहिए, बिकॉज एक पॉइंट के बाद आई बिलीव दैट पीपल बिकम वेरी होपलेस एंड दे फॉरगेट दैट फ्री विल भी होती है लाइफ में, और कुछ अपने कर्म भी होते हैं. नॉट एवरीथिंग इज व्हेन यू वर बोर्न, व्हाट टाइम यू वर बोर्न एंड वेयर यू वर बोर्न, राइट. कुछ अपने कर्म भी होते हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी डायरेक्ट कर सकते हैं. सो कितना इन चीज़ों पे विश्वास रखना चाहिए, कितने फ्रीक्वेंटली ये सेशंस लेने चाहिए, और किस हद तक ये गाइडेंस सही है, और उसके बाद इट्स जस्ट प्योर मैडनेस. लवली. सो ये जो आपने बोला गाइडेंस, दैट्स द राइट वर्ड, बिकॉज लोग प्रिडिक्शंस के और रेमेडीज के पीछे बहुत भागते हैं कि प्रिडिक्शन दे दो और रेमेडी दे दो. आई थिंक वो इंडिया में इतना चलता आ रहा है, आई डोंट ब्लेम देम. एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ यू ओनली कि भाई ये कुछ नहीं होता है. इनफैक्ट माय नेम मीन्स पूजा करने वाली, एंड आई वाज मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी. माय मॉम वाज लाइक तेरा गलत नाम रख दिया है. सो इट वाज लाइक दैट, बिकॉज ऑब्वियसली कोई लॉजिक की बात नहीं करता है एंड सब बड़ा अंधविश्वासी टाइप होता है. बट कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक तो ऑल ऑफ दिस वर्क्स ऑन आपने पास्ट लाइफ में कर्मा क्या किया है. देयर इज अ रीजन कि आप चाहे किसी भी पंडित से पूछ लो, किसी ज़ेरन पिकअप कराना है, पीपल ट्राई डूइंग दैट ऑल्सो दीज डेज. किसी सोल को या किसी आत्मा को जब आना हो तभी आएगी. ओके, आप ट्राई कर सकते हो. एक तो पहली चीज़ ये है गाइडेंस के लिए, वाई इट इज़ कॉल्ड ज्योतिष. ज्योतिष का क्या मतलब है? ज्योति प्लस ईश. ना ज्योति इज वॉट? इट्स लाइट. ईश इज डिवाइन गॉड. आप जो बोलना चाहो, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, राइट. सो एनी थिंग दैट टेक्स यू क्लोजर, जो आपको ईश्वर की ज्योति की तरफ लेके जाए, दैट इज ज्योतिष. सो दैट हैज़ न्यूमरोलॉजी, दैट हैज़ एस्ट्रोलॉजी, टैरो, हीलिंग, सब उसी के अंडर आता है. एंड इट इज़ बेसिकली कि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, राइट. तो उसके तरफ जाने की गाइडेंस, बिकॉज अल्टीमेटली हम वो बने हैं. आप इसको आप साइंटिफिकली और लॉजिकली अगर थोड़ा देखना चाहो, इट इज़ ऑल अबाउट सबकॉन्शियस माइंड. वी हैव 3 sorts ऑफ माइंड: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, राइट. अभी हम बात कर रहे हैं, वी डूइंग इट वेरी कॉन्शियसली, बट बहुत सारी चीज़ें हम सुन भी रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, दैट्स ऑल गोइंग इनटू माय सबकॉन्शियस. टैरो स्पेसिफिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड रीड करता है, एंड इट्स एन एनर्जी बेस्ड टूल. ठीक है, उसमें आपको इंट्यूशन ज़्यादा चाहिए, साइंस कम चाहिए. ओके. न्यूमरोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है. अब ये है कि हर स्टडी में ना कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ प्रोज है. दिस इज वाई बहुत सारी चीज़ें हैं, दे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. कि साथ में करोगे तो बेटर गाइडेंस मिलेगी. ओके. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, एस्ट्रोलॉजी में आपको क्या चाहिए? आपको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए. अब बहुत लोगों को ये 3 चीज़ें पता नहीं होती हैं, पता भी होती हैं तो टाइम ऑफ बर्थ शायद सही नहीं है. एंड बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे पैदा हो रहे हैं, ट्विंस फॉर एन एग्जाम्पल, राइट. सो न्यूमरोलॉजी वहाँ फेल हो गई. उसमें खोरा न्यूमरोलॉजी करके भी होता है जिसमें चार्ट होता है, दैट वी टेक हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी. आप जैसे उसमें चार्ट्स देखते हो वैसे डिफरेंट बातें, पर न्यूमरोलॉजी वहाँ फेल हो जाएगी. ठीक है, बट वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, 80+ चार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे फिर भी आ सकता है. अब वाई एम आई टेकिंग दिस इंटायर थ्योरी इज, कर्मा भी कोई चीज़ होती है. 3 टाइप्स ऑफ कर्मा होते हैं कि अगर आप सेम हॉस्पिटल में, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखोगे, 10 बच्चे तो एक साथ हो ही रहे होंगे. क्या सबकी किस्मत सेम है? भाई न्यूमरोलॉजी तो सेम ही बताएगी, राइट. अगर आप एस्ट्रोलॉजी वाइज देखोगे तो प्लेस ऑफ बर्थ भी सेम हो गया, वो सब भी सेम ही बताएंगे. बट जैसे बोला भाई अंबानी के यहाँ कोई पैदा हुआ है, विजवे कोई किसी और क्लास में पैदा हुआ है, क्यों? क्योंकि आप अपना कर्मा लेके आ रहे हो. आप कर्मा में यू हैव 3 टाइप्स ऑफ कर्मा. एक होता है संचित, एक होता है प्रारब्ध, तीसरा होता है क्रियामान. संचित क्या होता है? जो हमने एक्यूमुलेट किया है, संचय किया है. ठीक है, बहुत सारी पिछले जन्मों में जितने भी हमने कर्म करे हैं, वो सब का एक्यूमुलेशन ऑफ रिजल्ट्स. एक बकेट आप मान लो, उसमें संचित कर्म जा रहा है. अब इस लाइफ में मेरी सोल ने क्या डिसाइड किया है, अर्चका, साधका, राधिका, कि मुझे ये भोगना है, दैट इज माई प्रारब्ध, जो आपको कुंडली में, डेट ऑफ बर्थ में दिखता है. दैट इज द रीजन कि मेरी डेट ऑफ बर्थ आपसे डिफरेंट है, आपको अलग नंबर्स मिले हैं, रूल करते हैं, बिकॉज ऑफ माई प्रारब्ध कर्म. ठीक है. क्रिया मानस जो मैं इस जन्म में कर रही हूँ, क्योंकि सब कुछ मैं लेके आ गई तो मैं अब क्या करूँगी, राइट. बट द क्वेश्चन इज, क्या कर्म बड़ा है या आपकी डेस्टिनी, प्रारब्ध बड़ी है? इट्स 60% एज पर एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस कि आपका प्रारब्ध ही बड़ा है. ओके, एंड 40% इज क्रियामान, जहाँ हम फ्री विल की बात करते हैं. सो अब हम जब रेमेडीज़ की बात करते हैं कि ये होक्स है, मतलब क्या है, बकवास चीज़ें हैं या एक्चुअली कुछ चीज़ है, नाउ यू हैव टू मेक पीस विद द फैक्ट कि भाई जो आप अपने प्रारब्ध में करके आए हो वो तो आपको भोगना पड़ेगा ही. सो मेजर लाइफ टाइम इवेंट्स जो आप टैरो में मेजर अरकाना के थ्रू देखते हो, ठीक है, तो उसमें यू हैव योर मैरिज, यू हैव आप किस कॉलेज में जाओगे, जॉब प्रमोशन, बच्चा कब होगा, थिंग्स लाइक दोस. ठीक है, वो चीज़ आपके प्रारब्ध कर्मा के हिसाब से हो गई. क्रियामान इज डे टू डे, आज मैं बीमार होंगी या नहीं होंगी, आज पॉडकास्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऑल ऑफ दैट जो मैं कर्म कर रही हूँ. सो अब आप इसको अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो, आप गूगल मैप चलाते हो, दीज टूल्स आर सिमिलर.
कि आपको गाइडेंस चाहिए कि यार यहाँ ब्लॉकेज ना मिले, यहाँ की जगह में डिटॉल लेके कहीं और चली जाऊँ एंड थिंग्स लाइक दोस। नहीं तो आप पान वाले से पूछ रहे हो, आप किसी और से पूछ रहे हो, वो डिफरेंस है। अब जो लास्ट पार्ट था कि भाई इसमें घुसता ही चला जाए कोई, या किस हद यू तक नो माने? व्हेन टू स्टॉप। नाउ द थिंग इज द फ्री विल पार्ट। अब आप रेमेडी से क्या कर सकते हो, अगर आपका कुछ पॉजिटिव है उसकी ब्लेसिंग लेना, जो दशा से भी डिसाइड होता है। टैरो में आप मेजर माइनर अरकाना, मेजर अरकाना इज योर स्पिरिचुअल लेसन्स, कि ये जब तक आप नहीं सीखोगे लेसन्स विल कीप गेटिंग रिपीटेड। जो हम स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि भाई एक से ब्रेकअप हो गया, उससे हो गया, बट तब भी पैटर्न तो Somehow मेरा same वही है। situation, same. You know, you Yeah. wonder कि how have I landed in this situation all over again? एंड जब तक सोल नहीं सीखेगी तब तक फिर और थप्पड़ पड़ेंगे। वाई? बिकॉज आप सिर्फ उस पे मना नहीं करते हो कि ओके फाइन लेट्स ब्रेक अप वट एवर, आप और सुनाते हो, देन यू आर ऑन रिवेंज मोड। आवर जनरेशन इज लाइक दैट, नो? सो वो Suddenly क्रियामान all the कर्मा, breakups make sense. यस, सो क्रियामान कर्मा तो आप खुद ही खराब कर रहे हो। फिर यू लाइक, यू नो, मेरी ही किस्मत खराब है। अरे जितना किस्मत में था आपने बस उतना भोगना था, राइट? सो वो जानना कि भाई ये तो लिखा है, एंड आप एनर्जी हीलिंग रेमेडी करके, राइट, आप अपना वाइब्रेशन बढ़ा देते हो, वेयर द सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्स इन, कि यार मेरे उसमें अगर रिलेशनशिप या जॉब का दुख लिखा ही है तो मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, भोगूंगी तो मैं तब भी, राइट? सो अगर कुछ नेगेटिव लिखा है मेरे प्रारब्ध के हिसाब से, उसकी नेगेटिविटी कम करना या अपनी वाइब्रेशन इतनी बढ़ा देना कि मेरे को फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। विजो भी कि मेरा बहुत अच्छा टाइम था 2010 में, 2015 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वी ऑल हैव दोज अपॉर्चुनिटीज जो रिग्रेट करते हैं, तो कि इसको छोड़ देना है, अभी अच्छा टाइम है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट अल्टीमेटली योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी पावरफुल। आप बोलो कि मैं तो मानती ही नहीं, तो मैं कुछ भी आपको बताऊं, कुछ भी लिखा है, आपने अपना सबकॉन्शियस माइंड फ्री विल इतना एक्टिवेट कर रखा है, नथिंग विल वर्क। सो वन, इट इज़ वेरी फेथ बेस्ड, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अंधविश्वास तो स्टूपिड, राइट? क्योंकि आप फिर अपनी पावर खो देते हो, क्योंकि आप कर्म नहीं करोगे तो जो डेस्टिनी में वो भी नहीं मिलेगा। आप अंबानी के घर में पैदा हुए हो, बहुत अच्छा बिजनेस आपको मिलेगा, बट अगर आप रोज चादर तान के सोने में लगे तो कहाँ से मिलेगा? यू नॉट डूइंग योर क्रियामान कर्मा, नो? सो दैट्स द डिफरेंस। सो रेमेडी भी एक पॉइंट तक ही काम करती है, एंड द ओरिजिनल एंड द रियल रेमेडी इज एनर्जी हीलिंग। सो मेडिटेशन, पूजा पाठ, विच वी सी अ लॉट ऑफ अप ग्रैंड पेरेंट्स डूइंग, राइट? रेकी एंड ऑल, प्राणिक हीलिंग, थीटा हीलिंग, ये सब इनका शॉर्टर वर्जन है, बिकॉज वी लिव इन कलयुग। तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम जप करने में लगे हैं, मेडिटेशन करने में लगे हैं, फिर थॉट्स का भी ध्यान रखें, बिकॉज ऑल ऑफ दैट एड्स टू आवर कर्मा। सो ये डिफरेंस होता है। सो आप इस अप्रोच से देखोगे कि यार जीपीएस है, अल्टीमेटली अपने लाइफ का चार्ट तो मैं खुद ही राइड कर रही हूँ, एंड की गाइडेंस लेने में कोई हार्म नहीं है। प्रिडिक्शन एंड ऑल की तरफ जब आप जाते हो, और या फिर जैसे आप बोल रहे हो एक्सप्लोर पेज पे एंड ऑल, पीपल आर लाइक रेमेडी दे दो, रेमेडी दे दो। भाई आप सबका बर्थ चार्ट डिफरेंट है, आपने प्लैनेट इधर का उधर हिला दिया, किसी और को कुछ बोल दिया, सो देन दैट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। एंड नथिंग बीट्स द फैक्ट कि भाई यू हैव टू बी अ गुड पर्सन। सो डिवाइन कनेक्शन आपका जितना अच्छा है, ज्योतिष का जो मैंने बोला था, द फर्स्ट पार्ट इज डिवाइन से कनेक्ट करना। हम बहुत सारे ऐसे सोल्स को जानते होंगे, इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, इतने लॉजिकल नहीं होंगे, बट उनकी बोली हुई बात सच हो जाती है। वाई? बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड डिवाइन कनेक्शन। सो और आप देखोगे बहुत लोग बहुत पढ़ते हैं इस फील्ड में, बट उनकी प्रेडिक्शन सच नहीं निकलती। वाई? क्योंकि डिवाइन से तो कनेक्शन नहीं है, प्योर सोल नहीं है। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट बीइंग अ प्योर सोल। ज़बरदस्ती किसी का हार्म नहीं करना, एनिमल दिख रहे तो उनकी मदद करना, या कोई भी आपसे लेस प्रिविलेज्ड है, जस्ट बीइंग अ गुड सोल, गोइंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, दैट रियली हेल्प्स। अगर आप इस मोडालिटी में करियर बना रहे हो, विज वी इफ यूर अ क्लाइंट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एंड देन ऑल ऑफ दिस इट्स कॉल्ड सूडो साइंस या दैविक विद्या, क्योंकि आपका कोई कनेक्शन है तब भी आप उससे मिल रहे हो। आप हर टैरो रीडर के पास नहीं जाओगे। जैसे आपने बोला एक्सप्लोर पे बहुत लोग आते हैं, राइट? क्यों आपको एक ही से कनेक्ट हुआ या 2-3 से ही हुआ? दैट इज बिकॉज आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, एंड दीज मोडालिटीज विल कॉल आउट टू यू। How much to rely on remedies and what to expect when you're doing those remedies? Okay. So I will start with the last question कि what to expect. जितना बिना एक्सपेक्टेशन के करोगे उतना बेटर है, बिकॉज अगेन कर्मा थ्योरी, यू हैव 2 डिफरेंट कर्मास, एक होता है निष्काम, एक होता है सकाम। तो अगर आप कोई कर्म ये सोच के कर रहे हो मुझे यही मिलेगा वापस, अभी क्या होता है, मैंने डोनेशन किया, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है कि यू नो आई वांट अप्रिसिएशन। सो निष्काम इज मैंने बस अपनी ड्यूटी मान के किया कि मैं एक सोल हूँ, जो मैंने बोला था डिवाइन कनेक्शन। अब रेमेडीज में करते क्या हो यूजुअली, आपने कभी घास जाके खिला दी काऊ को, एनिमल्स फीड कर दिए, यू आर यूजुअली गिविंग बैक टू द नेचर, राइट?
तो वो करने की बजाय अगर आप सकाम वाले रूट में जा रहे हो कि मुझे ना ये मिलेगा, अब मेरा केतु ठीक हो जाएगा, अदरवाइज डॉग्स को लात मारते रहते हैं लोग, राइट? तो भाई फिर भूल ही जाओ, क्योंकि भाई आप क्रिया मान में तो अपना वो बकेट भर रहे हो ना बार बार. सो दैट इज वन. सेकेंड, अगर आप मेडिकल एग्जाम्पल लो कि अब मुझे बुखार है, जुकाम है, राइट? बॉडी मेरी ही लड़ेगी, दवाई क्या करेगी, मुझे थोड़ी हिम्मत देगी एंड थोड़ा आराम देगी. अल्टीमेटली तो बॉडी की इम्यूनिटी ही काम आएगी, राइट? तो जो मेरा सोल है वो रेडी है ये लेसन लर्न करने के लिए. सो रेमेडी विल हेल्प मी फर्स्ट बिकम बेटर अंदर से कि यार मैं इसके लिए रेडी हूँ. बहुत बार ये होता है कि हमें लगता है यार मेरी मत ही मारी गई थी, राइट? आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली एट दैट टाइम. जब आपका डाउन टाइम आता है तभी ये टूल्स काम आते हैं. कोई खुशी me के टाइम पे about नहीं चला. मेरी जेन्युइन मत मारी गई थी, मुझे बस कोई ये बता दे, इशारा दे दे कि आ गई है वापस. या सो उसी के लिए चाहिए होता है. एंड अगेन गोइंग बैक कि अगर आप जितना भी रेमेडी कर रहे हो ना प्लैनेट्स के लिए करते हो, वो क्या है, वो एजेंट्स हैं गॉड्स के. तो जब मैं आपको एनर्जी हीलिंग बोल रही हूँ कि वो रियल रेमेडी है, आप पूजा पाठ करो, बहुत मेडिटेशन करो, योग प्राणायाम. वाई? बिकॉज वो आपको डिवाइन कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है. अल्टीमेटली आप ज्योति की ईश किस लिए कर रहे हो कि मैं डिवाइन की तरफ जाऊँ. सो हम लोगों के लिए तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ फॉर पीपल लाइक अस, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम ना. तो आपका ये रेकी हीलिंग कर लो, लामा फेरा कर लो, कोई भी ये करोगे तो वो चक्रा बैलेंसिंग में हेल्प करता है. ठीक है? सो 20-25 मिनट इफ़ यू गिविंग एवरी डे, आपके सारे एरिया ऑफ लाइफ ना प्रारब्ध पे काम करने शुरू हो जाता है. बुद्धिज्म में जो नम्यो रेंगे क्यों होता था, काफ़ी फेमस है, वो भी उसका क्या मीनिंग है, आई रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ कर्मा. सब लॉ ऑफ कर्मा को ही अटैक कर रहे हैं बिकॉज गॉड आपको कर्मा से सेव नहीं कर सकता. अगर आप गॉड की ह्यूमन लाइफ भी देखोगे, यू सी लॉर्ड राम, सीता माँ देखोगे, कृष्ण, They all had their struggles. एग्जैक्टली. क्योंकि नियति से आप फिर नहीं हट सकते अगर आप मनुष्य हो. जब भगवान नहीं हट सकते तो हम क्या करेंगे? वो तो अपना लिख के नलिफाई कर सकते हैं ना, बट नहीं होता है. ठीक है? सो रेमेडी से एक आपको स्ट्रेंथ मिलती है. दूसरा, बिकॉज आई फॉलो वैदिक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, उसमें दशा सिस्टम आ जाता है. दिस इज वाई मुझे वो ज़्यादा एक्यूरेट लगता है, क्योंकि वो बहुत पर्सनलाइज्ड है आपके चार्ट के हिसाब से. एंड एज कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी जहाँ हम 80-100 ईयर का लाइफ स्पैन लेते हैं, वहाँ पे हम 45 ईयर्स का लेते हैं. तो बहुत माइन्यूटली आप देख सकते हो ना फिर What is चीज़ें. dasha? सो दशा Planetary इज positions? इट्स अ टाइम पीरियड. सो एक होती है अंतरदशा, एक होती है महादशा, जो न्यूमरोलॉजी में होती है, एस्ट्रोलॉजी में और भी होती है. सो अंतरदशा इज फ्रॉम योर बर्थडे टू द नेक्स्ट बर्थडे. सो काफ़ी स्पेसिफिक है. right. सबका ही 1 जैन से थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सो बर्थडे टू बर्थडे इज अंतरदशा. एंड महादशा इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर दैट इज रनिंग. सो अगर 7 की चल रही हो 7 ईयर्स लास्ट करेगी, सन की चल रही है सो 1 हुआ 1 ईयर लास्ट करेगी, राइट? अगर आप दशा की रेमेडी कर लेते हो, जितने भी आपकी बर्थडे वाइज चल रही है, यू गेट द ब्लेसिंग्स. ठीक है? जो आपकी फॉर एग्जांपल लिखा है प्रमोशन का टाइम है, शादी का टाइम है, बच्चे का टाइम है, पता ही नहीं था, ब्लेसिंग्स ही नहीं. क्यों? क्योंकि उठ पटांग रेमेडीज बहुत करते हैं लोग, लोगों को बहुत शौक है करने का. तो आप अपने नंबर्स की ब्लेसिंग या प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स दिला देते हो. इसलिए मेरे को लगता है कि आप एनर्जी हीलिंग कर लो, दैट इज मच बेटर देन डूइंग ऑल ऑफ दिस उठ पटांग रेमेडीज. आप अपना चार्ट एनालाइज करवा के करोगे, दैट्स वे बेटर. इट विल वन हेल्प यू नलिफाई जो भी नेगेटिविटी है, उसको नीचे करना, आपको स्ट्रेंथ देना, एंड ब्लेसिंग सही टाइम पे, वही जो मत मारी गई वाले मोमेंट्स ना हो. एंड अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी ठुकनी थी, ठीक है, आपका एक्सीडेंट होना था, आप घर में फॉर एग्जांपल डोलो खा के ठीक हो गए, है ना, हॉस्पिटल नहीं गए. सो वो सारी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है. वहाँ रेमेडीज़ का रोल है. बट वो जो डिपेंडेंसी है कि नहीं भाई अब मैंने ये किया है, अब तो भगवान आके ठीक करेगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है. कर्मा थ्योरी तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी. बिकॉज रिमेंबर दैट एग्जाम्पल, दिल्ली गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 बच्चे साथ में पैदा हुए, सबकी किस्मत सेम नहीं है. सबको अपने सर्कमस्टांसेस प्रारब्ध से मिलेंगे. तो सबकी जर्नी डिफरेंट है, इंक्लूडिंग ट्विंस. सो वो फ़र्क पड़ता है. ठीक है. So there are 2 types of remedies from what I've seen and heard. One is अच्छी remedies, right? जो आपके कर्म अच्छे करती है, कि feed cows, feed dogs, सुबह जल्दी उठो, सूर्य को जल दो, and all of that. Right. तो ये तो समझ में आता है, इसके पीछे का लॉजिक एटलीस्ट इवन अ लेमैन कैन ट्राई टू रिलेट कि हाँ मैं अपने कर्म अच्छे कर रही हूँ तो कुछ मेरा पुराना जो है वो अब्जॉल्व हो जाएगा. बट दीज रेमेडीज वेयर यू टेक अ ग्रीन पेन, make an infinity symbol, or write these numbers, burn a candle, or write numbers and keep it what by your is- bedside table or under your pillow when you Yeah. sleep. so I'm not qualified enough to comment कि ये सही है गलत है. I'm nobody to make fun of it, but I personally don't see the logic behind it, because in the first case at least you're doing something good, Yeah. which is why एक तो आप खुद अपनी नजरों में भी उठ जाते हो थोड़ा, and आपके obviously बुरे कर्म थोड़े तो absolve होंगे, but here when you're just doing these things that absolutely make no sense. ये रेमेडीज का कुछ है इसके पीछे कुछ सो रेमेडीज में ना 2 चीज़ें होती हैं. एक तो रेमेडीज होती हैं
दूसरा होता है टोटका विच यू टॉकिंग अबाउट, कि जिसका कोई लॉजिक नहीं है. अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स न्यूमरोलॉजिस्ट लोग यूज़ करते हैं, बट इसका लॉजिक वो कोई नहीं दे सकता है. सो एक तो वो चीज़ें हैं. बट आप सोचो आपने नंबर लिख लिया या ग्रीन पेन वर्सेस रेड पेन यूज़ कर लिया, यूनिवर्स इतना खाली नहीं बैठा है ना, भगवान इतना खाली बैठे हैं. ठीक है, सो कर्मा थ्योरी तो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी. अब सेकेंड इज कि आप मनुष्य हो तो आप सबसे ऊपर हो दिमाग वाइज भी. भाई पशु पक्षी आए हैं, वो सोचते हैं ये हमारा कर्म है, भोग के चले जाएंगे. हम बहुत स्मार्ट होते हैं, एंड ऑब्वियसली यूजुअली नेगेटिव वाला स्मार्ट. ऐसा हो नहीं सकता कि आपके साथ कोई बुरा करे और आप बोलो ये मेरा लेसन था, वाह वाह कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ किया. राइट, अगेन गोइंग बैक टू क्रियामान, तो मनुष्य तो कभी बाज आएगा नहीं. सो आप कितनी भी रेमेडी कर लो, ऑल दैट, ये बैलेंस के लिए थी. पहली बात ये है. सेकेंड, अगर जैसे आप जो काव का बोल रहे हो, क्या वो हमेशा काम करेगी? वो डोनेशन वाली रेमेडी है. आपको बहुत बार अगर आपके पास जैसे मर्क्यूरी की रेमेडी होती है, मर्क्यूरी आपके चार्ट में या तो बैलेंस्ड है या ओवरपावर्ड है. ठीक है, या वीक होता है. बहुत लॉजिकली बात करते हैं. ओवरपावर्ड है तो आप डोनेशन करोगे, बट अगर बैलेंस था तो आप उसकी पावर खत्म कर रहे हो डोनेट कर करके. ठीक है. अच्छा. हाँ, कुछ अब आपको कब ग्रीन खाना खाना है, कब ग्रीन कपड़े पहनने हैं, कब नहीं पहनने. लोग क्या करते हैं, मंडे को आप वाइट पहनो, थर्सडे को येलो पहनो. Thursday को yellow, या सो भाई आप सबके पास जाके ऐसे मंदिर के घंटे बजा रहे हो विदाउट नोइंग कि आपके देवता प्लैनेट्स कौन से हैं, किसकी पावर आपको लेनी है, किसकी नहीं लेनी है, देन इट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, एक वो चीज़ है. सेकंड, अभी आजकल लॉजिकल रेमेडीज क्या है, नेम न्यूमरोलॉजी हो गया. जैसे नाम की वाइब्रेशन होती है, वो मेरे हाथ में है. ठीक है, मोबाइल नंबर अभी इतना वैलिड हो गया, 24 घंटे मोबाइल के साथ होते हैं, तो नंबर की वाइब्रेशन आ रही है, वो मेरे हाथ में. कार में इतना ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या जो सब कुछ पहले था वो अभी भी वर्क करेगा? मे बी नॉट. ठीक है. फिर आप जब काव को फीड करने जाते थे, इट इज़ सेड, गीता में मैंने सुना है, ऐसा लिखा है, मुझे भी लोगों ने, मैंने पढ़ा नहीं है बट लॉजिकल लगता है मुझे, कि आप जब हाथ से खिलाते हो ना, जब काव आपके हाथ से खाती है तो उस हिसाब से मिल्क प्रोड्यूस करती है. पहले काव आप अपने घर में रखते थे, राइट, तो उस हिसाब से करेगी मिल्क प्रोड्यूस जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, उस न्यूट्रिशन के हिसाब से होता था. तो वो होता था रीज़न. फिर पूछ करने का होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. सो काव इट्स अ रीज़न कि हम उनकी पूजा करते हैं. सो वो चीज़ें होती थी. अभी क्या होता है, चारा मैंने ले लिया, तू खिला दियो, मैंने पैसे दे दिए. That's not how it works. I mean, Yeah. I don't think it should. बट लोग करते हैं. सो दिस इज वाई आप जितना चक्रा बैलेंसिंग पे फोकस करोगे, दैट विल बी मच बेटर, वट एवर कॉल्स आउट टू यू. ये आप वैसे भी करो, अच्छा है, बट चार्ट के हिसाब से करो. डोनेशन या कहीं ये रेमेडी पढ़ ली, आप अपना चार्ट खराब कर दोगे. एंड रेकी पे बहुत रिसर्चेज हैं, सो इसलिए रेकी इज वेरी वेरी वाइडली स्प्रेड अक्रॉस. So इसमें is it different like levels उसमें होते हैं. होता क्या है? मेडिटेशन होती है या I फिर heard it's about healing. chanting होती है? कुछ नहीं होता है. आप रेकी कॉल करते हो, आपको अट्यूनमेंट करके एक टेक्निकल टर्म होता है सारी हीलिंग टेक्निक्स में. अट्यूनमेंट का क्या मतलब है, कुछ सिंबल्स हैं या रेकी एनर्जी या कोई भी एनर्जी, वो आपके अंदर से फ्लो करे. वाईफाई जैसे लगाते हैं कि कोई राउटर वाईफाई वाला चाहिए, वाईफाई की तारे हैं, मेरे घर पे कनेक्शन चाहिए. सो सिमिलरली, और रेकी मास्टर और अ लामा फेरा मास्टर, हुमकारा विदली मास्टर, प्राणिक हीलिंग मास्टर विल इंट्रोड्यूस यू टू दैट. ठीक है, आपको अट्यून करेगा कि आपके अंदर से वो फ्लो करे. उसके बाद क्या होता है, सब में डिफरेंट प्रोसेसेस है. आप एनर्जी कॉल करते हो, मोस्टली सारी सिम्बल्स बेस्ड हैं. रेकी फर्स्ट लेवल टच बेस्ड होता है कि हाथ से, जैसे हम जो साई बाबा वाला बोलते थे, हाथ से हील कर दिया, जीसस क्राइस्ट, सेम बात है. इट्स नॉट न्यू टू इंडियंस एट ऑल. ठीक है. सो आप, लेकिन रेकी लेवल 1 में क्या होता है, आपको 1 घंटा 10-12 मिनट चाहिए रोज, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, अगर हील करने नहीं है इतना टाइम. सो माई सजेशन ऑलवेज इज आप 2 लेवल साथ में कर लो. सेकंड लेवल में सिम्बल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. एंड रेकी बहुत ईजी, आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो. फिर आप डिस्टेंस पे भी भेज सकते हो. आप मैंने तो मतलब अपने फ़ोन को भी ठीक करने के लिए यूज़ करी थी कि नीचे गिर गया था, एंड आई हैड iPhone 11 तब. मैंने कहा चलो यार, इतना पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ज़रा ट्राई भी करते हैं. एंड आई हैड टू गेट इट फ्रॉम US. बिकॉज ऑब्वियसली आईफोन में डिफरेंस पड़ता है ना प्राइस का. सो अब मुझे iPhone 15 Pro Max मंगवाना था. लेकिन चले कैसे, उसकी लाइन आई जा रही है रोज. आई स्टार्टेड गिविंग इट रेकी and Did it it worked. work? It's still working. It's lying in my handbag, both the things. I was like, Sadhguru, will you give your phone? बहुत बार AC का प्रॉब्लम, कभी ब्लूटूथ स्पीकर काम नहीं चल कर रहा. या और जैसे गाड़ी, अगर आपके एनिमी नंबर पे, अब न्यूमरोलॉजी सीख ली, गाड़ी थोड़ी बेच दोगे, रेखी दो उसे. वास्तु इफेक्ट्स अगर सही नहीं आ रहे हैं, राइट, बाहर का मैं खाना खा बाल रही हूँ, टूट रहे हैं. बाल टूट रहे हैं. एंड फॉर गर्ल्स यूटेक का इतना डर होता है व्हेन यू यूजिंग पब्लिक वॉशरूम, बाहर का पानी पीना, खाना खाना, राइट, आप क्लेंस कर लो. Fuck, be safe. Yeah, exactly. So 10-second job.
सो बहुत फर्क पड़ता है. या फिर आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हो एंड यू वांट कि यार ये मेरी बात सुन ले एटलीस्ट, ठीक है. सो आप उसकी थर्ड आई पे सिंबल बना सकते हो जस्ट फ्रॉम योर थर्ड आई एंड यू नॉन, वो आराम से आपकी बात सुनेगा. सो प्रोवाइडेड आपका वाइट इंटेंशन हो, इट्स Right, नॉट right, ब्लैक right. मैजिक कि आप सोचो कि नहीं नहीं यार आप तो फिर ऐसे सबको ही अपने वश में करो एंड ऑल. नहीं, नथिंग लाइक दैट. रेकी विल ओनली वर्क अगर आपका इंटेंशन प्योर है. सो द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज अंदर की डस्टिंग करना. घर की भी तो कर रहे हो ना, तो अंदर क्या प्रॉब्लम है, फिर तभी बीमार होते हो, खाना सूट नहीं कर रहा एंड थिंग्स लाइक दोस. बाल झड़ना द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे को तो these बहुत days. often करने की, तो she falls sick very often. Well, look I who's was the same talking. person. Lesser than you at least, please. I I don't think the blame you tables have guys. turned. मतलब हवा चलती थी एंड मेरे को बुखार हो जाता था. Now after I've been doing रेकी, nothing impact. मतलब मेरे को इतनी ठंड लगती थी, जुकाम तो एकदम प्रॉपर था कि बस कुछ भी हो, आपको हो रहा है तो मेरे को हो ही जाएगा फॉर श्योर. विद रेकी माई इम्यूनिटी इज एक्सेलेंट नाउ, क्योंकि मैं रोज अपने चक्रा बैलेंस कर रही हूँ. तो मैंने खुद इम्पैक्ट देखा है उन That is चीज़ों so में. interesting. Yeah, maybe we should try it out. Yeah, maybe we मैंने अपने should. मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इम्पैक्ट देखा. मैं पीरियड पेन्स वर रियली बैड. Really? Yeah? तो मुझे लगा भाई ये तो बहुत ही सही चीज़ है. लाइक माई डैड इज़ अ डॉक्टर, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बट पिल्स इतनी खानी पड़ती थी पहले से खाओ एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई हैड टू टेक अ लॉट ऑफ सिक लीव्स. कॉलेज में भी यही लीव्स रिजर्व्ड होती थी. उसके बाद से अब आई डोंट टेक एनी मेडिसिन. उसके बाद मुझे पता भी नहीं चलता है. नाउ इट्स दैट स्मूथ. आई वाज जस्ट टोल्ड मेडिकली कि भाई दिस इज समथिंग दैट यू बॉर्न विद, आप पहले खा लो दवाई एंड ऑल ऑफ दैट, तो बहुत फर्क पड़ता है. सारी लड़कियां अब इसके बाद रेकी Exactly. करने And then वाली it हैं gives you periods glow के लिए. also. Yeah. Oh, okay. So suddenly, there's this wave around angel numbers. Yeah. 111, 222, 555. 777. ठीक है, 369. So, what is the legitimacy? Because somebody asked Sadhguru this question कि angel numbers क्या होते हैं? And he's like, red card theory. आप घर से निकलते हो ये सोच के कि आज मैंने रेड कार्ड देखनी है, तो फिर red card नॉर्मली ही आप स्पॉट करो या ना करो. When you set that intention, you will spot a lot of red cards because you're telling your mind to spot red cards. So he said that angel numbers are nothing but pure coincidence. But I would like to ask you, what is your take on Want this? to you mention Sadhguru and पिटवाओगे मुझे. Now I'm like भाई believe in politically angel numbers correct. also. I do believe in it and now the thing is जो आप ये बोल रहे हो ना रेड कार थ्योरी, या कि आप दिमाग में इंटेंशन सेट कर रहे हो, देन एंजल नंबर्स नॉट वर्क. 11-10 हो रहा है, चल 11-11 होने वाला हाँ, है. exactly. आपको आप अचानक से देखो एंड बार बार वो मैसेज आ रहे हैं. अगेन शकुन शास्त्र वाली चीज सबने सुना है ना, बिल्ली रास्ता काट गई, उसको शगुन नहीं शकुन होता है. अब शकुन हो गया एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. दही चीनी खाना इज गुड शकुन. वही सेम चीज़ें हैं. तो आप इंडिया से देख लो या बाहर से देख लो, एंजल्स क्या है, आपको सपोर्ट करने के लिए हैं. अभी ये हम नेचर से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो हम मैसेज भी उसका रीड नहीं कर पाते. आर यू रियली टेकिंग इट और नॉट इज द क्वेश्चन. सो एंजल नंबर्स डेफिनेटली वर्क एंड वो चेंज होंगे अगर आप देखोगे, डिपेंडिंग ऑन आपको जो लेसन चाहिए था. यू फॉर एग्जाम्पल आस्क फॉर अ साइन, आप खुद टेस्ट करके देखो ना कि मुझे लग रहा है कि यार कल मुझे ये वाला प्रोजेक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. यूनिवर्स गिव मी अ साइन, जिसको भी आप मानते हो, गॉड गिव मी अ साइन, व्हाटएवर. वेट फॉर द साइन टू कम. इट कैन बी थ्रू अ ड्रीम. कोई मूवी का साइन हो सकता है, उसमें वही सीन आ गया एकदम से, दैट मेक्स सेंस टू यू. ऐसा कोइंसिडेंस कभी देखा है कि आपने सोचा यार इसका मैसेज, मैं इसको मैसेज करती हूँ अपनी फ्रेंड को और उनका आ तुरंत जाता है. हाँ. नथिंग इज अ कोइंसिडेंस इन यूनिवर्स. But sometimes what happens is that, for example, मैंने आज decide किया that I really should I maybe put my resignation in or not tomorrow, right? And God give me a sign and I'm waiting. कहीं ना कहीं मेरा कुछ personal bias होगा कि मेरा मन कर रहा है तभी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो मेरा मन हाँ करने का है, बट मैं अभी भी साइन का वेट कर रही हूँ. सो sometimes what happens is we may take the wrong thing as a sign. क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें वो साइन मिले, तो शायद कोई चीज साइन नहीं भी है यूनिवर्स का, और हम सोचेंगे कि बस यही साइन था, अभी मैं जाके रेजिग्नेशन अपना डाल देती हूँ, या फिर उल्टा हो जाता है. सो हाउ डज वन इवन मतलब पता कैसे चले कि हाँ ये साइन था और ये साइन नहीं था? Good question. So two things. One, there's a difference between intuition and imagination. ठीक है. और दूसरा चीज, आप कर क्या रहे हो कि आप साइन रिकॉग्नाइज करने लायक हो या नहीं. इट्स अ स्किल एट द एंड ऑफ द डे कि आप अपने आप से कनेक्टेड हो, मेडिटेशन, पूजा पाठ एंड व्हाटएवर. एंड द थर्ड पार्ट इज, डू यू हैव फेथ. इंट्यूशन और इमेजिनेशन में यही फर्क है. आपने स्किल बिल्ड कर ली, डीप ब्रीदिंग कर ली, प्राणायाम कर लिया, यू कनेक्टेड विद योरसेल्फ एंड हेंस विद यूनिवर्स. बट क्या आप फेथ करते हो? आपको एंजल नंबर्स और तभी दिखेंगे जब आपको उसमें विश्वास है. 2 दिन दिखेंगे बिकॉज रील देखी थी एक कोई, उसके बाद नहीं दिखते हैं. एंजल नंबर जिनको दिखते हैं वो कंटिन्यूसली दिखते हैं फिर, एंड वो चेंज होते हैं. कभी 222 दिख रहा है, कभी 1212, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या आंसर चाहिए. So,
I have to ask this. Okay. I see angel numbers very often and different. कभी 111 दिखता है, कभी 222 दिखता है, कभी 555 दिखता है, कभी 333. So what does that mean then? Because a different kind of angel numbers appearing all the time. So आप उस टाइम पे किसी प्रेसिंग क्वेश्चन का थॉट रखते होगे? It's just randomly come. Maybe Yeah. I'm not that aware. कोई in that तो moment. प्रॉब्लम होगी, यार ये लड़का मेरे लिए सही है या नहीं है, और यहाँ पे मैं रेजिग्नेशन डाल दूँ या नहीं डालूँ, थिंग्स लाइक दोस. हमेशा कोई बॉन्डिंग इशू तो होता है अपने पास, राइट? इसीलिए एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. दैट्स वन. सेकेंड, आपके नंबर पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने, फॉर एग्जाम्पल आप नंबर 7 हो, नंबर 8 हो, नंबर 2 हो, डिवाइन कनेक्शन लेके पैदा होते हैं. इनकी इंट्यूशन इज़ वेरी हाई और इनको बहुत दिखता है. मे बी साधका विल नॉट बी एबल टू सी इट, आई मे नॉट बी एबल टू सी इट. आई एम नंबर 4, आई विल वांट टू नो योर नंबर्स. 2, 7, 8 वालों को बहुत दिखता है. माय ब्रदर इज अ नंबर 7. हाँ, तुझे अब दिख रहे हैं, मैं तो बचपन से देखता हूँ, ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आई एम लाइक ठीक है. I also number 4. 7. She's 7, I'm 8. Yeah. 7 and 8. 7 and 8. It's not a coincidence, but my number 4 is made out of 22. So 2 का थोड़ा एलिमेंट है, इसीलिए आई एम स्टिल गेटिंग सम सपोर्ट. एंड एंड यू सी यार आप थोड़ा लॉजिकल बोल रहे हो, प्लस लेकिन इंट्यूशन भी चाहिए. सो आप नंबर्स का एडवांटेज ले रहे हो फिर. तो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ MBA करने के बाद, मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने के बाद, अरे यार पहले ही कोई मुझे बता देता. सो दैट इज़ हाउ दीज मोडालिटीज़ विल हेल्प, कि आपको सुकून कहाँ मिलेगा. Right. So do you want to tell us that क्या angel number क्या mean करता है? Because I believe Google search is not the answer, because Google tells you so many things and half of them don't make Google तो sense. cheek मारने को बोल देगा कि symptoms of, you know. नहीं ऐसा नहीं है. या No HMP, Cool. please. कि अगर आपको कभी भी नंबर 1 का दिख रहा है, इट विल ऑलवेज टॉक अबाउट न्यू बिगनिंग्स, कि आने वाली है, रेडी हो जाओ. ठीक है, आई विल जस्ट गिव यू द कीवर्ड्स ऑफ इट. सो जब भी 111 आए तो आप वो प्रेसिंग कोई थॉट सोचना है कि यार मेरे को कहाँ पे न्यू बिगनिंग का मैं सोच रही थी करने का, कि है कर ले, राइट? इसको हम एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल भी बोलते हैं कार्ड्स में, कि आप ये मत सोचो कि यार सक्सेस मिलेगा, कोई मुझे श्योरिटी देगा तो ही मैं करूँगी. अगर आप फर्स्ट स्टेप लोगे, थिंग्स विल ओपन अप फॉर यू. सो 111 का हो गया. अगर 2 आ रहा है, 2 इज़ मोर अबाउट यू लिसनिंग टू योर इंट्यूशन. दूसरों में मत ढूंढो अपने जवाब, खुद की सुनो. हमेशा होता है ना यार, मेरी गट फीलिंग थी, आज शी सेड कि यार इंट्यूशन है, मुझे लग रहा है. सो 222 और एनीथिंग रिलेटेड टू 2 विल बी जो मन कर रहा है, इंट्यूशन है, दिल कह रहा है, वो करो, राइट? नंबर 3 विल बी सीक गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट, या नॉलेज या स्किल बढ़ाओ उस चीज़ के लिए, आपको जो भी आंसर चाहिए. सो अगर आपको एक कीवर्ड्स याद रहेंगे ना, सो इट्स लाइक PNC, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बना के आप खुद कर लोगे. 0 जहाँ ऐड हो गया वो उसको एम्पलीफाई कर देगा. 1 इज़ अ लोअर वैल्यू, 10 इज़ हायर. वाई? बिकॉज 0 गॉट एडेड. Right. ओके, सो वो डिफरेंस है, और ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया. देन कमिंग टू नंबर 4. नंबर 4 विल ऑलवेज टॉक अबाउट 1 हार्ड वर्क, 2 लॉजिक. दैट इज नंबर 4 का डिपार्टमेंट. दीज आर लाइक डिफरेंट HODs, ऐसे समझ सकते हो. ठीक है. नंबर 5 विल ऑलवेज बी यू शुड ट्रैवल और कीप द चाइल्ड इनसाइड यू अलाइव, राइट? कम्युनिकेशन पे ध्यान दो. अगर बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई है, हस्बैंड से लड़ाई हुई है, राइट, तुम जाके कम्युनिकेट कर लो इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि भाई वो उसका मैसेज आएगा तो ही बात करूंगी. दैट कैन बी द अदर एग्जाम्पल. ठीक है. 666 और एनीथिंग रिलेटेड टू 6 विल बी लग्जरी. अपने आप को पैम्पर करना, पैसा खर्चा करो ऑन गुड थिंग्स, इट्स फाइन. स्पा के लिए जाना है जाओ, मूवी देखनी है देखो. ठीक है. सो 6 इज ऑल अबाउट पैम्परिंग एंड लग्जरी पे खर्च करना. ठीक है. 7 अगेन इज स्लाइटली अराउंड इंट्यूशन, एंड इट्स ऑल्सो अराउंड यू गोइंग टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी इंस्टेड ऑफ रिलीजन. ठीक है. सो 7, 8, 2 नंबर्स आर ऑलवेज अराउंड इंट्यूशन. जो 7 का क्राइटेरिया इज यू टेकिंग योर मी टाइम. अगर बहुत सोशलाइज कर रहे हो, 7 विल बी लाइक सिक्लूड हो जाओ, अपने आप आपको आंसर्स मिल जाएंगे. ठीक है. अदरवाइज सोच रहे हो इस पार्टी में मैं जाऊँ नहीं जाऊँ. दिस इज द लेमेस्ट ऑफ एग्जाम्पल. वैसे और 777 कहीं दिख जाए, मैंने कभी नहीं सुना किसी को 777 दिखता हुआ. मे बी आपको किसी मोबाइल नंबर में ऑल ऑफ अ सडन दिख जाए, राइट? सो देन इट्स अ साइन कि भाई टेक योर मी टाइम, बिकॉज बहुत थके हुए हो तुम. अदरवाइज यू विल बर्न योर सेल्फ आउट. 8 का क्राइटेरिया इज ऑलवेज दैट यार फल की चिंता मत करो, काम करो. बिकॉज शनि, सैटर्न, काम करोगे तो ही मिलेगा. कोई रेमेडी काम नहीं करने वाली है. कोई भी रेमेडी काम नहीं करने वाली है वहाँ पे, बिकॉज ही इज अ जज. सो आपका जब आएगा टाइम, आपका केस खुलेगा तो भाई कर्म ही देखे जाएंगे. सो डू द हार्ड वर्क, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर मनी, फाइनेंशियल गेन्स अगर आपको चाहिए. अब इसमें आपको ना ऑड और इवन नंबर 4 और 8 में देखना पड़ता है कि अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है 4 देन इट्स बैड, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स इट्स गुड फॉर फाइनेंसेस. सो दैट इज जस्ट 1 स्टेप अहेड.
going from nursery to KG. And then 9 is the last number. It can one talk about completion because numerology 1 to 9 चलता है. ठीक है, so 9 is all about completion. 1 पे new beginning की New बात करी. beginnings. 8 is कि यार घसीटा मारो अपने आप को. 9 is very near, मंजिल, दिल्ली दूर नहीं है, that type, right? So आपको 9 you can take it as a sign कि जो मैं काम सोच रही हूँ ख़त्म करने का, जो मेरा टारगेट है वो होने वाला है, या ये काम ख़त्म करो उसको. अभी बहुत सारे कोर्सेज हम साइन अप करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, देन होता है यार मैं नहीं कर रही, आई एम सॉरी, आई एम डन विद यू, राइट? सो इट इज़ एन इंडिकेशन दैट यार ये लास्ट लेग है, खींच लो अपने आप को. So now, let's take a deeper dive Okay. into what tarot card reading is. Okay. And, we see this beautiful spread here. So why don't you take us through the process and maybe, लगे हाथ हमें भी एक थोड़ा सा experience मिले Perfect. आज. What is tarot card reading? You want me to read it for you guys? Yeah. Okay. First of all, what kind of questions do you usually get? क्या फीलिंग्स हैं, डिवोर्स होएगा, शादी होएगी, वो मेरे पास वापस आएंगे. प्यार गुड वाला. Relationship क्वेश्चंस questions. आर अराउंड, या career wise, or which institute should I go to, which country is more suitable, which company should I do the job now or business, right? These things, कौन सा शहर मेरे लिए अच्छा है, and if I want to switch what time period, या अभी क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्यों प्रमोशन नहीं हो पा रहा है मेरा, या बिजनेस में क्लाइंट्स कैसे आएंगे, इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर मी, या जनरल 2025 कैसा दिख रहा है मेरे लिए. So I think let's keep it a little, open-ended and generic, something that won't give me the heebie-jeebies. Okay. Okay, I'll take care of that. Okay. And I would love to know what 2025 is going to be like for me, career and health-wise, maybe just. Okay. You'll सारिका, ये read पूछ something ले for शादी me. होगी कि नहीं होगी. नहीं करनी ही नहीं है वो मैं free will. Okay. You keep your questions ready. Meanwhile, Radhika. Yeah. Like a list. सारिका, हाथ वाथ पकड़ना है क्या? फिर लोगों को Is समझ आ that the जाएगा. high tower? कुछ तो ऐसा होता है. Something. She's just making you scared unnecessarily. गंदे गंदे का हाथ का नाम लेके गंदा वैसे कुछ होता नहीं है. Ooh, this is so interesting. Okay. Lovely, lovely. I love it. Cool. So overall, how 2025 will be is I've got the High Priestess card. Okay. ठीक है? So it's no coincidence that you're a number 7 and in 2025 you're sitting here and starting in January only कि भाई क्या होता है ये tarot reading, I want to get it done and all. So that will be the highlight of 2025. You trying to control your emotions in case emotional health was not doing okay. So take it from me that your emotional health will be better. Why? Because so Hierophant talks about कि आपकी ताले की चाबी एक spiritual mentor के पास है. This can be a pandit also. Work wise, this can be anyone who you look up to. ठीक है. So overall guidance की पहले बात कर लेते हैं. दो चीज़ें हैं कि overall कैसा जाएगा आपका year. आप अपनी ज़्यादा सुनोगे, black और white में रहोगे. ठीक है. Grey area पसंद नहीं होगा आपको इस साल. कि बस either do or die. Okay. Or my way or the highway sort of energy. That's one. Second, you will listen to your intuition. ठीक है. बहुत बार ऐसा लगता भी होगा, बट लगता होगा लोग बोलते नहीं यार दुनियादारी के हिसाब से करो, बिकॉज यू आर नंबर 7, नो. द नंबर 7 आर लाइक चलो ठीक है दुनिया बोल रही है तो कर ले, दुनिया बोल रही है तो चिल भी कर लेती हूँ दुनिया के साथ, राइट. सो ओवरऑल द गाइडेंस इज कि आपको जब भी लगे कि यार इंट्यूशन इतना मुझे सही लग रही है, जस्ट टू गेट दैट सेकेंड ओपिनियन, गो टू स्पिरिचुअल मेंटर. ठीक है, जो आप अभी कर ही रहे हो. लव लाइफ वाइज, ओ हो यू वांटेड टू बी सिंगल, टॉक टू मी एंड ऑफ 2025. योर स्टार्स विल डेफिनेटली चेंज फॉर द बेटर. समय का पहिया, बिकॉज इट्स व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है. Okay. एंड बी ओपन, यू विल गेट अ लॉट ऑफ सूटर्स एंड टॉक टू मी. दिसंबर 2025 में नहीं करनी शादी, नहीं चाहिए लग रहा है. शी इज द आई विटनेस हियर. सो भाई गर्ल्स पॉडकास्ट का जब राउंड अप होगा तो हम वापस Yes. तीनों बैठेंगे. यस बिल्कुल. मेरे से बात करना तब मैं देखूंगी जरा क्या है भाई Sarika, this ऐसा. guy better be nice, huh? I'm telling you. Yeah, any guy that will come into my life will be vetted by my best friend. Yes. Okay, but love it, lovely. Okay. डर लगा नहीं लगा ना. नहीं, इट्स लाइक डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद पूछता है दर्द हुआ. हाँ, नहीं, but ये अच्छी वाली सुई थी. I like it. सी Yeah. टैरो आल्सो हील्स यू, सो वी कैन सी मे बी जुकाम ठीक हो जाए. हाँ, वो तो टैरो यार आधा हो गया वैसे. ओह Yes.
Lovely. Perfect. साधका ये पूछना है कि दिल्ली बॉय हो गए या नहीं, because साधका is allergic to Delhi boys, so she's like कि अब कुछ भी हो जाए दिल्ली का लड़का नहीं होना चाहिए. I'm joking, we obviously won't do a reading about it, but just for the fun element that, you know. Learn your lessons. Yes. It's ironical, this is South Delhi Girls podcast, but Sadhaka is looking for like a Bombay dude maybe, or maybe Yeah, Bangalore. yeah. I think tech guy. So Tech some guy. Yeah, would be tech lovely guy for sound Sadhaka. interesting. Yeah. I love पहले तो कि मुझे तो करना ही नहीं है, चाहिए नहीं. Now she's open. Wow, lovely. So she's like, हाँ चाहिए तो फिर ये वाला चाहिए. I'm taking light from the spiritual, guru. So yes, Divine. divine. Yes. Lovely. Okay, now moving on to you. Yeah, so I'm very excited. Lovely. My questions are ready. पहले बता दूँ? या पहले मैं नाम ऐसे पूरा और date of birth Oh, बता sorry, दो. sorry. So excited. So my name is Radhika Dudeja. Okay. 17 December 1995. Okay. Yeah. Dudeja. Yeah. Okay. Double Radhika eight. Dudeja. Okay. 195. Okay. Ooh, रिपोर्ट कार्ड देखने से पहले जो होता है ना, interesting. So questions are, there are only 3 questions in life. Just love, career, health. ठीक है, परफेक्ट. सो फिर करियर से ही स्टार्ट करते हैं. पहले ओवरऑल गाइडेंस पे मैं बाद में आऊँगी, बिकॉज करियर एंड मनी के काज एक्सेलेंट है. जो करना है कर लो भाई. इट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर करियर, एंड फॉर मनी इट्स दी स्टार. एक्सीलेंट. जो चाहिए करो, एंड वट एवर प्लान यू हैव फॉर योर करियर यू विल रीच दी हाइट्स ऑफ इट. एंड वैसे ही 9 नंबर का साल है, तो जितना आप एनर्जी डाल सकते हो डालो. एंड इफ़ यू थिंक कि भाई वर्किंग वुमेन वाला चीज़, इफ़ यू थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड और रिलेशनशिप कैसे, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप का भी थोड़ा एंगल दिख रहा है. तो दी हाईलाइट विल बी सम प्रपोजल विल कम योर वे. आई डोंट नो द रिलेशनशिप स्टेटस, बट जो भी है एक्सपैंड करने का. सो इफ यू सिंगल देन कमिटेड तो मैरिज देन बच्चा एंड वट एवर. सो यू विल गेट वेरी नाइस. Single. And in fact, my parents are very worried about my marriage. They've been asking me to get married from the last 1 year. So Your parents are going to love me because overall it's Knight of Cups. Okay. soon, this year or later? This year. Okay. So be ready for it. साधका लहंगा रेडी कर ले. सब ready है, लड़का है. इंटरेस्टिंग बात ये है, आई डोंट नो पास्ट में लव लाइफ में क्या हुआ है. द 5 ऑफ कप्स. अभी तक मूर्निंग ख़त्म नहीं हुई है कि भाई ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ. एंड लड़के तो होते ही ऐसे हैं. दैट नीड्स टू चेंज. काज बोल रहे हो गया भाई, मुंह फुलाना बंद कर. इतने अच्छे लोग आ रहे हैं तेरे पास, तो तू रेडी क्यों नहीं है. या 2025 में मनी एंड करियर की इतनी अच्छी साथ में एनर्जी बहुत कम लोगों की दिखती है. सो आई एम सो ग्लैड आप लोग जान में ये चीज़ पूछ रहे हो. एंड यार लव लाइफ में सल्क करना बंद कर, तो बहुत अच्छे बंदे मिलेंगे इस साल. सो बी वेरी रेडी. एंड घोड़ी चढ़वाना है तो ये तो घोड़ी चढ़ा हुआ बंदा है. और लिटरली क्या लोगे. I've always wanted that. I don't want like a dating scene. I don't want 1 year ka dating and then proposal. I want somebody to come, sweep me off my feet, and within a month I'm like, okay, I'm getting married. वो जट मंगनी पट ब्याह I've वाला. always, that love at first sight wali cheez. I'm the big believer. दिस इज टॉकिंग अबाउट रंग बदलने की जरूरत पड़े तो बदलो, मुंह बंद रखने की जरूरत पड़े तो नहीं हो, बस एक्सचेंज करने की जरूरत है. एंड प्लीज 8 नंबर ही कंजूस नहीं बनना है यार. प्लीज खर्चा करो. एंड बिजनेस में अपने बेस्ट career फ्रेंड्स में पे खर्चा करो. Sadhika, don't say that, okay? She's the one who's recently told me that Radhika, you've gone on this maniac gifting spree. You need to stop. मतलब मैं इतने gifts दे चुकी हूँ. If there was a medical condition for it, it would be named the Radhika. She because I love to spends give gifts. like You're you're a a crazy lovely, person. खुद पे भी खर्चा करो. 8 नंबर वाले नहीं करते हैं. दूसरे के लिए फिर भी दे दिया ठीक है, अपने लिए ठीक है, काम चला लेंगे. नो. एंड वेन एवर यू थिंक कि यार गिव अप कर देते हैं, मेरी बस की नहीं, बिकॉज 8 वालों को डिलेड सक्सेस आता है, बट द थिंग इज सक्सेस गारंटीड आता है. सो जस्ट कंटिन्यू टू पुट इन द एफर्ट्स. यू ऑल्सो मीट मी इन December 2025. नो, तब तो शायद मैं ऑटोग्राफ मांग रही हूँ. काश मुझे ऐसा दिख रहा हम है. आपके ले रहे होंगे. So yeah. So now on this note, we have just entered into 2025, right? And for all the viewers जो ये episode आज देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं रेकी के बारे में, tarot card reading के बारे में, numerology के बारे में, we'd love for them also to have a takeaway. So why don't you take us through the cards, take us through the numbers, and maybe what 2025 is going to be for the women out there watching this. Sounds good. Yeah, maybe basis their Mulang. Yeah. Okay. Only for women?
No, men also, of course. Achha, okay. yeah. So let's talk about what 2025 will be in general. And because it's adding up to 9, that is Mars. मंगल से रूल हो रहा है ये साल, ठीक है. So आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगेन जो आपसे रेजोनेट करे आप वो करो, बिकॉज एग्जैक्ट बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है. सो 9 है मतलब यू विल हैव अ लॉट ऑफ करेज, ठीक है. जो आपने सोचा था यार ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, करेज मिल जाएगा, यू विल टेक दैट लीप ऑफ फेथ. जो आलस करेगा वो मरेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मूलांक. दिस इज लाइक हैविंग अ मिलिट्री मैन, ठीक है, जिसको आलस पसंद नहीं है. द बेस्ट रेमेडी दैट आई गिव फॉर पीपल हु आर रूल्ड बाय 9 या जो 9 की अभी तो यूनिवर्सल एनर्जी है, यार वर्कआउट कर लो. एनीथिंग दैट मेक्स यू स्वेट इज एक्सेलेंट. ये रेमेडी हर कोई कर सकता है. इंस्टेड यहाँ खिला दो, यहाँ मंदिर चले जाओ, ऑल ऑफ दैट. सो वर्किंग आउट इज बेस्ट एंड अप्लाई द 5 सेकेंड रूल कि अगर कोई टास्क दिमाग में आया, प्रोक्रेस्टिनेट करने से अच्छा है उसके लिए 5 सेकंड के अंदर कुछ भी कर लो, इवन इफ इट एज स्मॉल एज कि यार मैं नोट्स बना लेती हूँ अपने फोन में, Reminder set कि कर लो. हाँ. सो वन स्मॉल थिंग दैट यू डू, जितना प्रोक्रेस्टिनेशन से पीछे जाओगे ना उतना आप इस साल को यूटिलाइज कर पाओगे. सो दैट इज वन. एंड सेकंड, प्लीज वर्कआउट. सो इफ नॉट गोइंग टू द जिम इज योर एक्सक्यूज, स्क्वाट कर लो, ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, पुशअप मार लो, राइट. ये सारी चीज़ें. देन रेड कलर अगेन विल डिपेंड ऑन योर चार्ट. अगर आपको लॉस ऑफ एनर्जी एंड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस या करेज फील हो रहा है, रेड कलर को अपनाओ, स्पेशली ऑन ट्यूजडेज, बिकॉज वो मंगल का दिन होता है, मंगलवार, राइट. सो आप रेड ज़्यादा खाओ, रेड पहनो, पिंक पहनो, ठीक है. लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा ही इतना कि लोगों के ऊपर चढ़ रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, या वोल्केनो टाइप का एंगर आ रहा है, वो मंगल का एंगर होता है. भरे जा रहे हैं देन फटना, दैट इज 9 वालों का एंगर. सो दैट इज हैपनिंग विद यू. बॉस रेड से दूर रहो, मिर्ची वाला खाना भी कम खाओ, ठीक है. ट्यूसडे को तो स्पेशली रेड मत पहनो, रेड ज़्यादा मत खाओ. टोमेटो सूप इज नॉट फॉर यू, बीटरूट जूस इज नॉट फॉर यू, ठीक है. और पिंक थोड़ा कम पहनो फिर. सो दैट इज अ जनरल वे ऑफ यूटिलाइजिंग द एनर्जी, ठीक है. एंड एंगर आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो, रोड रेज, कार एक्सीडेंट्स एंड ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. तो गुस्सा थोड़ा कम करना है. सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ वर्कआउट करोगे तो एक्सेस एनर्जी निकल जाएगी एंड यू विल बी एबल टू यूटिलाइज द एनर्जी वेल. एंड द 5 सेकेंड रूल, ठीक है. अब वी कैन पुल आउट डिफरेंट कार्ड्स फॉर डिफरेंट मुलांग पीपल. एंड नंबर 1 से अगर आप स्टार्ट करते हो कि 1, 10, 19, ठीक है, 28 को अगर आपका बर्थडे आता है किसी भी महीने की, तो ये साल आपके लिए कैसा रहेगा. नाउ सन एंड मंगल, दे आर व्हाट, किंग एंड वॉरियर, ठीक है, सेनापति. अब राजा और सेनापति कब मिलते हैं? जब वॉर होता है, राइट. उसके बिना तो नहीं मिलते हैं. सो यू विल हैव वॉर लाइक सिचुएशंस बट यू विल इम्प्लीमेंट इट वेल. सो अपने टूल्स की तैयारी कर लो. अगर आपको लग रहा है देयर इज सम बैटल इन रियल लाइफ एरिया वाइज कि यार लव लाइफ सही नहीं चल रही, या प्रमोशन वाइज मेरे को लग रहा है मैं थोड़ी और मेहनत कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, पुट इन दैट एफर्ट, बिकॉज सन ऑल्सो लाइक्स डिसिप्लिन. सूर्य हमेशा टाइम पे आता है. एंड आपको मंगल की एनर्जी और मिल रही है जो बस छूटने को तैयार है, राजा बोले और मैं लड़के आता हूँ, राइट. सो यू मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड हैविंग प्लान्स. अदरवाइज मंगल की एनर्जी कहीं भी जा सकती है क्योंकि वो तो छूटने को तैयार है. हाँ बोलो मैं मार दूंगा. आर्मी कैसे होती है? शूट एट साइट, राइट. सो दैट इज मंगल. सो इफ यू आर डिसिप्लिन्ड एंड आप अपनी टू डू लिस्ट लेके चल रहे हो एंड यू कीपिंग द करेज, देन द ईयर इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट. अदरवाइज गुस्सा करते रह जाना और ईगो में रहते रह जाना, राइट. सो कीप दैट इन माइंड. We'll quickly pull out a tarot guidance also. Okay. This whole craze around number 28, is it true? ऐसा होता है 28 नंबर ऑफ वेल्थ, कुछ भी करना है 28 को स्टार्ट कर दो. सो द थिंग इज कि ये सब ना प्योर नंबर्स वर्सेस 2 नंबर से बन रहे हैं. जैसे नंबर 1 इज प्योर सन की एनर्जी, 2 और 8 से बन रहा है. 2 इज एक्चुअली मून, 8 इज शनि. उससे मिलके बन रहा है तो फिर फर्क तो पड़ेगा ना. दैट इज नॉट प्योरली सन. वो फर्क पड़ता है. इसको कंपाउंड थ्योरी बोलते हैं. सो जैसे 1 में अगर आप 0 ऐड कर रहे हो 10 बन गया. अब 1 एम्पलीफाई हो गया कि 1 वाले को फिर भी पता है मुंह कहाँ बंद करना है, डोमिनेशन कहाँ बंद करनी है. 10 वाला तो बॉस, राइट. 28 वाले में आप इतना डोमिनेशन या गुस्सा नहीं देखोगे क्योंकि मून एंड शनि से बन रहा है. सो दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ टाइम्स आप रिलेट नहीं कर पाते हो. नहीं यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि आप कंपाउंड थ्योरी याद नहीं रखते हो, राइट. तो ये फर्क पड़ता है. अब आई एम नॉट सरप्राइज. सी कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी सब सेम बात बोलते हैं. ओवरऑल कैसा रहेगा? आई गॉट द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, विच इज़ भाई ईगो कम, इंसल्ट कम करो. गुस्से में सुनाना, गाली देना, पीट देना नहीं करना है. गीत बज जाना. या सो प्लीज वर्कआउट करो, वो एनर्जी जिम में निकाल के आ जाओ. एंड अ क्विक गाइडेंस फॉर पीपल हु सिंगल, लोगों का ज्ञान कम सुनो, ठीक है, कि यू विल नेवर नो कौन आपका वेल विशर है एंड कौन पीछे से छुरा
phokega, the backstabber. Okay, so the more you listen to yourself instead of listening to others, दूसरों से मत मांगो एडवाइस, बकवासी एडवाइस देंगे, अल्टीरियर मोटिव के साथ एडवाइस देंगे. तो अपनी सुनो. एंड इफ यू फील दैट योर रिलेशनशिप इज स्टैग्नेटिंग, टेम्प्ररी फेज है, ब्रेकअप नहीं करना है, राइट? टेम्प्ररी फेज है, एक्लिप्स वाला फेज है. बट इफ यू आर कमिटेड ऑलरेडी, देन आई गॉट द एम्परर कार्ड. सो कन्वेंशनल चीज़ें करनी है. अगर आप सोच रहे हो कि माँ बाप के बिना ही शादी कर लेंगे, नहीं हो पाएगा. कन्वेंशनल चीज़ें क्या होती हैं? IVF की जगह नेचुरल डिलीवरी ट्राई करना इफ यू थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग योर फैमिली, और कि एटलीस्ट आप रोका कर लो, एंगेजमेंट कर लो इफ यू वांट टू सॉलिडिफाई द रिलेशनशिप. कन्वेंशनल चल रहा है. दिस आई कॉल K3G का अमिताभ बच्चन. कह दिया ना, बस कह दिया. वो एनर्जी अनुशासन, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रशासन, परंपरा, प्रतिष्ठा, प्रशासन. बस ये 3 आपके कीवर्ड्स हैं. एंड बहस तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, ठीक है? सो दिस इज समथिंग दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू. आई थिंक वर्कआउट कर लो, सूर्य के हिसाब से उठ जाओ, एंड मोस्टली अपना काम अपना डे लाइट में करो तो बेस्ट रहेगा. God. अब आते हैं नंबर 2 पे. अगर आप सेकंड को पैदा हुए हो, ठीक है, 11th को हुए हो, 20 और 29th. नाउ नंबर 2 इज व्हाट? इट इज़ अ वेरी हार्ट ड्रिवन एनर्जी, इमोशनल. और 9 वाला क्या बोल रहा है? उठ जा, राइट? दैट इज़ 1. एंड अगर आप क्वीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, भाई रानी को कभी मंगल पसंद नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि राजा को ले जाता है, ठीक है? सो आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, 2 वाले क्या होते हैं? यार एक काम किया, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, मैंने ये काम किया. दे आर लाइक दोज जो बेबीज चलते हैं ना, पेरेंट्स आर लाइक वाओ माय बेबी वॉक्ड. दे आर दोज पीपल. एंड 9 वाला बोलते हैं हाँ तो चले ही तो हैं, तो क्या किया है, ये तो सब करते हैं, राइट? उठ उठ काम कर. वी ऑल नो दोज फ्रेंड्स, राइट? सो वहाँ पे थोड़ा वो एनर्जी का है कि 2 वाले बोलते हैं यार चलता है ना, चलता है एटीट्यूड. वेयर एज 9 टॉक्स अबाउट एक्शन ले, ठीक है? दिल विल का हो जाएगा, दिल की बात में सुनियो, एक्शन ले. सो अगेन द 5 सेकंड रूल अप्लाइज योर एज वेल. ओके, एंड आपका मन करेगा कि यार छोड़ना, नहीं मिल रहा प्रमोशन तो छोड़ना, वो छोड़ के जा रहा है तो छोड़ना, राइट? सो वो नंबर 2 वाला चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज 9 ओवरऑल रूलर है इस साल, ठीक है? तो आप उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम आप ही को आएगी. सो दिस इज नॉट अंधविश्वास कि आप पहले से जान लो और उस हिसाब से कर लो, ठीक है? एंड 2 नंबर वालों को तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि ये जाके करेंगे वर्कआउट एंड ऑल. तो यार योगा प्राणायाम टाइप ही कर लो, बिकॉज आप मून के हिसाब से फिर चलोगे तो फुल मून में 10-15 मिनट्स आपने बिता लिए. वाटर कम वेस्ट करना, दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलेंट फॉर यू, ठीक है? गर्म चीज़ें अवॉइड करो, दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलेंट फॉर यू. एंड टैरो गाइडेंस देख लेते हैं एक बार. तेरा पर्सनली उठ पे You just heard the best reading for yourself. नहीं, बट पर्सनली 2 का मैंने बहुत बुरा सुना है. वाओ, लवली ना, बिकॉज जो बात न्यूमरोलॉजी वाइज करी है वही निकल के आ रही है. मेरे कार्ड्स मेरी लाज रख रहे हैं बेसिकली. बिकॉज क्या बोला था कि भाई रूलर है. सो अगेन अमिताभ बच्चन तो याद हो गया, एम्परर आया तो, कि भाई जैसा जो बोल रहे हैं वो कर लो, डिसिप्लिन में लाइफ जी लो. नहीं उठने का मन करता है, उठ जाओ. जितना आप डिसिप्लिन में जियोगे उतना ये साल अच्छा रहेगा. एंड कन्वेंशनल मेथड्स फॉलो करो, ठीक है? एंड आप फादर फिगर सुनो, अगर फादर नहीं है तो फादरली फिगर्स की सुनो. बॉसेस की रिस्पेक्ट करो, ब्रदर्स की रिस्पेक्ट करो, दैट इज मंगल. सो ब्रदर, हस्बैंड, ऑल ऑफ दोज आर मंगल, ठीक है? आपको भाई से लड़ाई नहीं करनी है, पति से लड़ाई नहीं करनी है, अगर आपको अपना ये साल अच्छा चाहिए तो. नाउ एक्सेलेंट फॉर बोथ. अगर आप कमिटेड हो या सिंगल हो, सो यू हैव 3 ऑफ कप्स, विच इज़ लाइक आप पार्टी करो और बंदा वहीं मिलेगा, टिंडर पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और जितना दारू पीना चाहते हो पियो, बंदा वहीं मिलेगा. सो यू वांट टू सोशलाइज, जस्ट गो फॉर योर हॉबी क्लासेस, चिल मारो. एंड जितना चिल करोगे उतना ज़्यादा चांसेस फॉर यू टू फाइंड द राइट सूटर. एंड दिस माइट ऑल्सो मीन इफ़ यू आर कन्फ्यूज बिटवीन 2 पीपल, देन जिसके साथ आपका वेवलेंथ मैच होता है कि यार इसके साथ मुझे मज़े आते हैं, मूवी देखने का मन करता है तो मूवी भी देखता है, ठीक है? मेरे को दारू पीने का मन करता है तो दारू भी पीता है, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? जो दिल को आपके भा जाए वो. देन अगर आप कमिटेड हो तो आई गॉट द सन कार्ड, अगेन एक्सेलेंट. 2 नंबर को कभी लव लाइफ का इतना प्रॉब्लम नहीं होता. लव लाइफ अच्छी होती है, खुद सल करते रहते हैं बिकॉज ओवर गिवर्स होते हैं. सो दैट इज व्हाट द कार्ड्स आर आल्सो सेइंग कि अगर आप कमिटेड हो तो आपका बच्चा भी हो सकता है, आपको मैरिज करनी है तो मैरिज भी हो सकती है. बेसिकली यू विल टेक द नेक्स्ट लेवल इन योर रिलेशनशिप एंड ओवरऑल यू विल इन्जॉय कि आप एफर्ट कम मार रहे हो. सो क्वालिटी टाइम है, क्वांटिटी चाहे इतना स्पेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बिकॉज भाई एम्परर इतना काम करा रहा है, राइट? बट क्वालिटी टाइम में योर रिलेशनशिप विल ग्रो ब्यूटिफुली.
Right. So that is the energy for those guys. Now if we come to Mulang 3 people, ठीक है ना, 369 की ना फैमिली होती है वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो मैं फॉलो करती हूँ. 369 कीप ऑन अट्रैक्टिंग ईच अदर एंड जितना ये लोग सिंक में रहते हैं उतना अच्छा. सो 3 और 9 की पटेगी. 3 क्या है, देवगुरु. 9 इज द वॉरियर. बोथ ऑफ देम आर एथिकल. सो कुछ भी अनएथिकल काम नहीं करना है इस साल. पहली बात तो वो याद रख लो. वर्कआउट मैं बार बार नहीं बोलूँगी बिकॉज दैट इज ओवरऑल रिक्वायर्ड. अगर आप अपस्किलिंग का सोच रहे हो, ठीक है, अगर आपका प्रमोशन रुक रहा है, सो आपको स्किल बढ़ाने की ज़रूरत है. एक्सेलेंट ईयर फॉर दैट. कोई कोर्स करना चाहते हो, एक्सेलेंट ईयर फॉर दैट. इफ़ यू थिंक यू आर डूइंग एन MBA या आप पोस्ट ग्रेड करना चाहते थे, करो. सो बेसिकली नॉलेज सीकर अगर आप हो या आपके कोई प्लान्स हॉल्टेड थे, आप उसको करो. यू विल गेट द राइट सॉर्ट ऑफ एनर्जी फॉर इट. ठीक है. सो अगर आपको लग रहा था आपको UPSC क्रैक करना है, CA क्रैक करना है, जिसके लिए लॉन्ग सिटिंग आवर्स लगते हैं, मंगल विल गिव यू दैट एनर्जी. सो एक्सेलेंट ईयर फॉर दैट. इफ़ यू वांटेड टू बिकम अ काउंसलर या आप किसी टैरो रीडर बनना चाहते हो, ऑकल्ट साइंस में जाना चाहते हो, एक्सेलेंट. यू वांटेड टू गेट इनटू ट्रेनिंग, कोचिंग इंडस्ट्री, Right. excellent for that. You want to become a lawyer or doctor, excellent for that as well. ठीक है. So career wise ये ध्यान रखने की ज़रूरत है. बाकी let me just pull out a few cards. Right. Yeah. But Rahu is like a lot of success suddenly, na? हाँ, she knows a lot यार. Yeah. If fashion brand छोड़ के, you should collaborate with me only. You know, somebody told me that I could be very good at this also. Like you have those kind of 8 number ना, even she can be very good at it. You guys are born with that energy. Mine is logical. This is why you see a lot of logic coming in. That is my. But I love that. Like I've been really enjoying the conversation also because it doesn't feel like it comes from somebody forcing their values or Yeah. belief system on you. Very So, true. Yeah. 4 and 8 attract each other, and 4 and 7. I don't know if you know Rahu and Ketu. Ketu, are yeah, part Ketu Ketu में of- she has so much Ketu energy because उसका दिमाग नहीं चलता. She's completely Very hard intuition driven based. feeling. Yeah. Yeah. And But I mine have a lot of 7 in my life. पता है? 8-7 का होता है कुछ. 8-7 का होता है. Why? Because 8 में और 7 में ये डिफरेंस है. 8 को मटीरियलिज्म आता है. 7 को लगता है छोड़ना यार, बस अपने में रह, ध्यान कर. That is the difference. More of them have excellent intuition and divination powers. बहुत divine connection feel करते हैं. This is why 7 and 8 are very जुड़ा हुआ. Yeah. ओके. सो ओवरऑल आई गॉट द वर्ल्ड कार्ड. मीनिंग भाई पढ़ाई करने जाना है अगर तो बाहर चले जाओ, प्रमोशन चाहिए तो चले जाओ. एक्सपेंशन के लिए अच्छी एनर्जी है. ठीक है. एंड यू विल क्लोज वन चैप्टर एंड मूव टू दी अनदर. वाई? बिकॉज मंगल विल गिव यू ऑल द एनर्जी फॉर इट. एंड एज इट इज़ पीपल हु रूल बाय जुपिटर, जो नंबर 3 का है, वो वैसे ही एक्सपेंशन में बड़े सॉलिड होते हैं. ठीक है. एंड बहुत एथिकल चलते हैं. सो एथिकली आप जो भी कर सकते हो वो काम करना. नो अंडर द टेबल स्टाफ, किसी का बुरा ना चाहना, ऑल दैट. ओवरऑल अ वेरी गुड ईयर कि आपने मेहनत बहुत करी थी, आप उसका फल भोगोगे. ठीक है. नाउ इफ यू सिंगल, तो my suggestion is, because I've got the Knight of Swords, boss, love life पे ध्यान दो. That is your goal setting that's required. दिमाग कम चलाओ, एक्शन ज़्यादा लो. 9 नंबर की एनर्जी का फ़ायदा उठाओ. And if love wasn't in your radar, please get it in your radar. Okay. And for people who committed, I've got the 9 of Swords. पिक्चर से भी काफ़ी एक्सप्लेनेटरी रहता है कि रातों की नींद उड़ना. सो थोड़ा अपने दिमाग पे कम जोर डालो. एंड दिस इज़ अ कार्ड वेयर इन सिर्फ स्ट्रेस की एनर्जी नहीं है. दिस इज अ प्रॉपर एंग्जाइटी डिप्रेशन एनर्जी. सो अगर आपको आप कमिटेड हो और ये फेज दिख रहा है, सीक प्रोफेशनल हेल्प. ओके. अदरवाइज पूरा साल यार स्लीपलेस नाइट्स में किसी को नहीं बताने में इंटरेस्ट है. राइट. तो रिलेशनशिप प्रॉब्लमैटिक रहने वाला है इनका. रिलेशनशिप प्रॉब्लमैटिक नहीं है. पीपल जो अपने दिमाग में खिचड़ी पकाती हूँ, नो दैट यार मैंने तो ऐसा बोला नहीं था. वाई? बिकॉज देव गुरु है ना, दिल पे ले लेते हैं कि भाई मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे आप पैसे कम दे दो, प्यार कम दे दो, इज्जत पे बात नहीं आनी चाहिए. दैट इज द टैगलाइन ऑफ 3 नंबर पीपल. तो ये वाली वो एनर्जी है जहाँ इज्जत पे बात आ गई. एंड देयर लाइक भाई ऐसे कैसे बोल दिया मुझे. सो अब मैं ब्रेकअप कर लेती हूँ, मैं डिवोर्स ले लेती हूँ, एंड वट एवर दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी. तैश में आना, अब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं, मेरे इन लॉज ने ऐसे बोला, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, दैट. एंड अपने दिमाग में फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी उसकी क्रिएट कर लेना. सो इसका मतलब ये है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म वो ट्रॉमा लेके चल रहे हो. Right. इट इज़ नॉट 1-2 दिन का कार्ड कि यार बस ऐसी आर्ग्यूमेंट हुआ था. नो. सो इफ यू विल टॉक टू दोज पीपल, दे विल बी लाइक नहीं वो गड़े मोड़ दे वो खान एंड ऑल ऑफ दैट. सो हेंस दिस इज अ कार्ड विच सेज यार प्रोफेशनल हेल्प ले लो. दैट विल हेल्प. यू कैन गो टू अ थेरेपिस्ट, यू कैन गो टू अ रीडर एंड व्हाटएवर. बट खुद से सॉल्व होना थोड़ा डिफिकल्ट है. Got it. More power to you, number 3. Yeah. Now coming to number 4.
मूलांक नंबर 4 है, अगर 4 को बॉर्न हो, 22 को बॉर्न हो, 13 को बॉर्न हो, 31 को बॉर्न हो, राइट? तो भाई आई विल जस्ट से कि एनर्जी गलत डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी. यू विल बी वेरी टेम्पटेड टू मैं तुझे बताता हूँ मेरा बाप कौन है टाइप एनर्जी, राइट? एंड हेंस मैं बताता हूँ, केस करता हूँ तेरे ऊपर, लॉट ऑफ लिटिगेशन सॉर्ट ऑफ एनर्जी, या हॉस्पिटल के चक्कर, बिकॉज इट्स कॉल्ड द बंधन योग, and a very bad bandhan yoga of numerology 4 and 9. So my suggestion will be कि भाई पहले तो हाथ जोड़ दो, पहले नो लीगल केसेस. बड़ा शौक है 4 वालों को धमकियां देना, गुंडा है नंबर 4. सो यू हैव टू यूटिलाइज दैट एनर्जी टुवर्ड्स योर गोल, बिकॉज आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी लॉजिकल. बट अगर एनर्जी कहीं जा रही है जो मंगल से मिल रही है, ऐसे खींच के लाना पड़ता है ना एक दोस्त को, कि तो क्यों फालतू में पंगे ले रहे हैं, हाँ सॉरी सॉरी रहने दे, मत बोल. yeah. So that is what number 4 people need to be really careful about. And because implementation power इनके पास नहीं होती है, that's the only good thing for this year. 9 number इनको implementation दे देगा. तो करेज वगैरह तो चलो ठीक है, नंबर 4 के पास 9 और भी ज़्यादा दे देगा. सो द थिंग इज़ कि आप गुस्से की जगह अपने एम्बिशियस गोल्स पे लगाओ एनर्जी. एंड जो भी आपके प्रोजेक्ट्स आपको लग रहे थे कि यार मुझे इंप्लीमेंट करना है, नंबर 4 की आदत है, दे विल स्प्रेड देमसेल्फ वेरी थिन, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, वो इस साल नहीं होगा. सो अगर आप गुस्सा एंड केसेस हॉस्पिटल की बजाय इस काम पे ध्यान लगा लो, तो हॉस्पिटल के चक्कर और कोर्ट्स के चक्कर कम लगेंगे. एंड यू कैन थैंक मी लेटर. बाकी आई विल पुल आउट अ फ्यू कार्ड्स टू सी. तो पता है ये चीज़ अरुण पंडित ने भी बोली थी कि 4 वालों को थोड़ा कॉशियस रहना है 9 साल में, बिकॉज आपकी हेल्थ इश्यूज वगैरह हो सकते हैं. तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं कि वो बचे अब तो मेरा health problem पेड से? कंसल्टेशन के सारे रेमेडीज निकलवा दोगे ऐसे. बट नो, आई विल गिव यू अ वेरी गुड रेमेडी फॉर जनरल दिस. सा रेमेडी कुछ. हाँ जनरल, बट ऑब्वियसली आई कांट इनवाइट बैड कर्मा ना, ऐसे रेमेडी दे दो जो Right. हाँ, no, of course. सो 2 things you can do and proceed with caution, which is कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है हॉस्पिटल के चक्कर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, सडनली बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, ये 2 है तो ही करना. विच इज़ कि हॉस्पिटल जाओ हर न्यू मून पे और कुछ खा के आ जाओ वहाँ से, क्योंकि खर्चा तो हॉस्पिटल का करना ही है. सो अगर आप प्रोएक्टिवली जाके करा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड अगर आपको ऐसे कोर्ट केसेस आ रहे हैं, दिस इज अगेन राहु स्पेसिफिक, मेरे को मत बोलना फिर अगर वैसे ही कर लिया. कोर्ट जाओ एंड कोर्ट के टॉयलेट में आप जाके पेप्सी या कोक फ्लश कर दो. दिस इज नॉट अ टोटका, दिस इज अ लॉजिकल थिंग, बिकॉज राहु इज द टॉयलेट इन सिग्निफिकेटर वाइज, द कम्बोर्ड इज टॉयलेट. सो वहाँ पे जाके आप फ्लश करके आओ. वहाँ पे जाके अगर खा सकते हो ग्रेट, अदरवाइज दिस कोक एंड पेप्सी थिंग वर्क्स लाइक वंडर अगर आपको कोर्ट का प्रॉब्लम आ रहा है तो. नहीं तो और कुछ नहीं है, ये इसमें से भी कुछ नहीं कर सकते हो तो किचन में बैठ के 40 दिन खाना खा लो, डिनर आफ्टर सनसेट, ये काम कर लो. सो दीज आर द रेमेडीज. इफ राहु इज गिविंग यू बैड इफेक्ट्स, दिस विल हेल्प यू. तो जैसे आप 4 हो एंड यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर 2 years, बट सडनली योर Instagram blew up. That is numerology. So I have that's what I set all wanted of to it. ask you. Did you see this coming कि 8 में या 9 में आपका ऐसा होने वाला है मैंने 2024 set या किया 25 था. में कि Yeah. So my अंतरदशा is of number 1 and Mahadasha is of 9 that's going on right now. तो रेमेडी बर्थडे के बाद ही कर ली. And number 1 was all about नए इनिशिएटिव जितने लेने हैं वो अभी ले ले. Right? So that is what I did. अब मोबाइल नंबर्स मैंने दोनों चेंज कर लिए अपने, और एक नेम एंड फेम पे सेट किया, एक पैसे पे सेट किया नंबर. So I was very categoric while taking the combinations also and the compound also. Then name अपना उस हिसाब से किया. I brought it on 33, which was the Ashtalakshmi Yoga. And 6 number पे लाना था, and my destiny number is 3, so everything was well planned. Obviously I couldn't have said कि यार blow up ही कर जाएगा, but I was working in that direction. So this is what I mean कि आप help ले लोगे तो ऐसा तो नहीं है कि कंटेंट पहले नहीं बना रहे थे, बट इट सडनली ब्लू अप. सो दैट इज ऑल टेकिंग राहु का ब्लेसिंग, बिकॉज 9 नंबर चल रहा है तो मेरा 9 and 4 कॉम्बिनेशन एक्टिव है अभी. सो आई जस्ट यूटिलाइज इट वेल. मैं खुद जाती हूँ न्यू मून पे हर हॉस्पिटल के ऐसे चक्कर काटने, एंड आई एम लाइक कोल्ड कॉफी यहाँ की अच्छी है, फ्राइड राइस यहाँ का अच्छा है, ऑल ऑफ दैट. सो जस्ट एंजॉयिंग दैट. सारा कैंटीन पता है सारे हॉस्पिटल्स का. So it helps. I won't give you any remedy that does not help. So but everything was planned. Okay, so overall guidance is the Fool, which is क्या बोला था कि लोग रोक रहे हैं कि भाई रुक जा. You're like अरे भाई इसको मैं बताता हूँ मेरा बाप कौन है, right? And गिरने वाला है वो, गिर सकता है, but
राहु इज लाइक पहले मैं करूंगा फिर मैं सोचूंगा, राइट, बिकॉज मंगल गिव यू लॉर्ड ऑफ एनर्जी, ठीक है. सो तुम तो यार वर्कआउट कर ही लो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, एंड सेकेंड तैश में नहीं आना है. सो यूटिलाइज दैट एनर्जी टुवर्ड्स योर गोल्स, ठीक है. एंड अपने वेल विशर्स की सुनो. एक बार आपको हेल्प मिलेगी कि आपको आपका कोई लव्ड वन बोलेगा कि यार इसको मत कर, मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ, इसके लिए मुझे ठीक फीलिंग नहीं आ रही है, राइट. सो उनकी सुनो. नाउ इफ यू आर सिंगल, आई हैव गॉट द हर्मिट कार्ड व्हिच इज लाइक यार आप ज्ञान तो बहुत देते हो, कभी खुद पे भी लगा लो. दिस इज व्हाई यू सिंगल. सबको ज्ञान देने को तैयार है, राइट, कि दैट फ्रेंड जो खुद सिंगल होता है होती है बट सबको कमिटेड करवा के छोड़ता है. यू डोंट बी दैट फ्रेंड, ओके. जो दूसरों को ज्ञान देते हो जरा अंदर जाके खुद भी यूटिलाइज कर लो अगर आपको सिंगल वाला अपना स्टेटस चेंज करना है. वेल, पीपल हु कमिटेड, यू विल यूटिलाइज योर मंगल का एनर्जी वेरी वेल, कि आप काम इतना करोगे कि होश ही नहीं होगा कि यार पीपल विल कंप्लेन कि यार थोड़ा तो टाइम दे दे, थोड़ा तो दे दे. आप बस बैंक बैलेंस से ट्रांसफर ही कर रहे होगे कि यार पैसा इतना बन रहा है, कोई नहीं, टाइम अगले साल देंगे. सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी. बाय गुड गिफ्ट्स फॉर पीपल, टेल देम दैट यू नो यू वर्किंग फॉर देम ओनली, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, बिकॉज एक्सलेंट टाइम फॉर योर करियर एंड फॉर अपस्किलिंग, ठीक है. सो दैट इज द गाइडेंस फॉर पीपल कि यार आप ज़्यादा टाइम निकाल नहीं पाओगे, सो बी रेडी. बट बैंक बैलेंस बढ़ रहा है अगर, सो बाय समथिंग लग्जूरियस फॉर योर लव्ड वंस. समटाइम्स दैट आल्सो हेल्प्स. Nice. Okay. Now coming to number 5, which is Mercury, ठीक है. It's a neutral energy. Why? Because Mercury is king का बच्चा, so he's a prince, and उसको ज़्यादा कोई मतलब है नहीं यार सेनापति वगैरह से कि हाय हेलो मिल लिए एंड वट एवर, ठीक है. सो ही इज़ द इम्प्लीमेंटर. ऑब्वियसली 9 उसको सपोर्ट करेगा, क्यों? क्योंकि राजा का बेटा है. Mercury इज मस्त मौला है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वेरी न्यूट्रल एनर्जी, ना दुश्मन ना दोस्ती. एंड Mercury पीपल दे लव कम्युनिकेटिंग. सो आपको कुछ भी कम्युनिकेशन रिलेटेड, पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, इंस्टाग्राम पे कोई कंटेंट बनाना है, उसको करो, ठीक है. यू शुड ट्रैवल अ लॉट दिस ईयर, दैट इज़ योर प्रैक्टिकल रेमेडी. और कुछ नहीं कर सकते तो 2 दिन का स्टेकेशन करके आ जाओ, ठीक है. बिकॉज नंबर 5 पीपल जितना ट्रैवल करेंगे उतना ही अपने लाइफ में ग्रो करेंगे, एंड 9 विल जस्ट हेल्प यू विद दैट. इट विल गिव यू दैट एनर्जी कि यार जो भी आपके ट्रैवल प्लान्स थे, नंबर 5 वाले होते हैं यार अगर ट्रैवल नहीं किया ना, का दिमाग खराब हो जाता है. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज कि यार आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है, राइट. घर में आप अपना सोफ़ा की सेटिंग चेंज कर ली, अपनी बुक्स की सेटिंग चेंज कर ली, दैट विल हेल्प यू यूटिलाइज द एनर्जी वेल. सो वेरी गुड ईयर फॉर कम्युनिकेशन, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट. अगर बॉस से प्रमोशन की बात करनी है और बोल रहे हैं कि यार नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, दैट, और यू थिंक यू स्विचिंग टू अ प्रोफाइल लाइक दैट, or some conversations that are hard but you should have done. Why? Because बच्चा है ना, so उनको लगता है यार रात गई बात गई. So time for you to have those hard conversations. Mangal will give you that courage. Remember I said 2025 will give you that courage. So time to have those hard conversations. That's very important. Now I will just quickly pull out cards. How lovely. Okay, so जैसे बात करी थी, I've got the wheel of fortune, which is like समय का पहिया अच्छी चीज़ों के लिए घूम रहा है, so utilize it well, ठीक है. So आपको यार luck is always on your side if you're a number 5, unless बहुत imbalanced हो, ठीक है. So a good year overall, and if you are single, then I've got the 5 of cups, which is like have those hard conversations. That's one. Stop being a sulk. इतना तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, दिल पे नहीं लगाने की ज़रूरत है, ओके. एंड जस्ट टर्न अराउंड एंड सी हाउ यू ग्रोन एज अ पर्सन. स्टॉप बीइंग अ चाइल्ड. इट्स गुड टू बी चाइल्ड लाइक बट नॉट गुड टू बी चाइल्डिश. दैट्स गोइंग टू बी योर मंत्रा इफ यू वांट टू improve your love life. Lovely ठीक है? advice. Such a good line, na? Yeah. It's good to be childlike but not childish. Yeah. And if you're committed, I've got the Knight of Wands, which is like मैं सोच तो रही हूँ हाँ आगे बढ़ूँ, but you know एक unnecessary fear आ जाता है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा वैसा तो नहीं हो जाएगा. So just stop your monkey mind. Why? Because energy हर किसी के पास इस समय ज़्यादा है because of 9 number. तो यार दिमाग को बोलो तो साइड हो, एक्शन ले लो. दैट 5 सेकेंड रूल, वो मैसेज भेजना है तो भेज दो, कॉन्वर्सेशन करो, राइट. एंड इफ़ यू आर लाइक थिंकिंग कि यार इन 3-4 में से आई एम कन्फ्यूज्ड, सो टेक दैट लीप ऑफ फेथ. वैसे कमिटेड वालों के लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है वो चीज़, बट जस्ट do not let an unnecessary fear stop you in your love life. That's going to be the highlight in 2025 for you. Okay? Now coming to number 6, जो मैंने बोला था 3, 6, 9 की फैमिली होती है. 6 is Venus. So Venus people again it's a neutral energy for them. Why? Because energy बहुत ज़्यादा है, तो 6 वालों से तो वैसे ही खर्चा नहीं रुकता है, right? They love luxury. कि ऑनलाइन शॉपिंग तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं इनके घर में लगते हैं वो
रोज घंटी बज रही है एंड पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं कि भाई कितना कितना महंगा हो गया, एंड देन रोते रहेंगे सेविंग्स नहीं हुई है, राइट? सो यार खर्चा करना ही है, सो माई सजेशन विल बी आप इन्वेस्टमेंट पे करो इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसेस, ओके? बिकॉज वेयर एवर यू विल पुट इन द मनी यू कैन एक्चुअली बाय प्रॉपर्टी ऑल्सो, बिकॉज मंगल इज अ कारक ऑफ प्रॉपर्टीज, एंड 6 वालों के पास पैसा होता भी बहुत अच्छा है बाय गॉड्स ग्रेस. एंड इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस में डिफ्रेंशिएट करना सीखो, बिकॉज आप जितना अच्छी जगह पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए ग्रो करेगा इस साल, ओके? बट ऑब्वियसली कॉशन इज एडवाइज्ड. सो प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रही थी तो कर लो. इफ़ यू वर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, व्हाई? बिकॉज वीनस इज द फेमिनिन एनर्जी एंड मंगल इज मैस्कुलिन, सो वेरी गुड ईयर फॉर दोज पीपल टू गेट मैरिड, okay? Or if you want to plan a child, good year for that. So if you're thinking of conceiving या conception में issues आ रहे थे तो आपको अब आपके रास्ते खुलते हुए दिखेंगे. So that's going to be the highlight. And of course with number 6 people also, again the energy wise they were like very साफ सफाई freak, ओके? सो अपनी एनर्जी उधर लगाने से अच्छा है यूटिलाइज इट ऑन बेटर थिंग्स. सो अननेसरी एक्सपेंस नहीं करना, नॉट बीइंग अ फ्रीक अराउंड हाइजीन का प्रॉब्लम है, ये है वो है, नॉट बीइंग वेरी ओसीडी अबाउट इट. आई एम यूजिंग इट वेरी कैजुअली दो, इट्स नॉट द राइट टर्म टू से योर, बट कि इतना साफ सफाई का कीड़े की जगह अच्छा है यार, अपनी एनर्जी अच्छी जगह यूटिलाइज करो. आई क्विकली पुल आउट कार्ड्स टू सी व्हाट द कार्ड्स हैव टू से. ओके लवली, क्या बोला था कि 2 ऑफ पेंटिकल्स आए कि भाई पॉकेट देख के खर्च कर, नॉट लाइक दिस कि यार 10 रुपये हैं बट 90 रुपये का लोन लेके 100 रुपये का शो ऑफ. नो. सो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एनर्जी सीन बिकॉज आप ना तैश में आके खर्चे करोगे. सो प्लान योर फाइनेंसेस वेल, कीप अ कंटिजेंसी फंड रेडी, ओके? एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू. एंड इमोशनल खर्चे नहीं करने हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, शिप्स ऊपर नीचे जा रही हैं एंड मूड अच्छा नहीं है, तो वो जो इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं ना कि यार only a hot chocolate can save me today, right? Only this luxury bag can save me today. Don't do that. And if you're single, I've got the advice of the Knight of Pentacles, okay? Which is भाई हिसाबबाजी कम करो. This is why your love life is stuck. मुझे तो ऐसा ही चाहिए, इतना पैसे वाला होना चाहिए, साउथ दिल्ली में साउथ बॉम्बे में नहीं रहते तो मैं करूँगी ही नहीं डेट, या? So be very flexible, that's one. And second, boss थोड़ा हिलो. सो अगर आपको यू आर वेरी स्टक इन योर लव लाइफ, जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, कुछ नहीं होने वाला है. मंगल की एनर्जी यूटिलाइज करो एंड थोड़े चेकलिस्ट आइटम्स कम करो, स्पेशली फाइनेंशियली. इतना पैसा तो चाहिए, इतना तो मेरे खर्चे उठाने वाला चाहिए. एंड आई थिंक दिस बिकमिंग वेरी फीमेल ओरिएंटेड बट गोस फॉर मेल्स ऑल्सो, ओके? मुझे बोलते बोलते रियलाइज हुआ. एंड देन कमिटेड हो अगर, एक्सलेंट ईयर. सी नंबर 6 वाले लोग फैमिली के लिए डू और डाई होते हैं. सो you're going to enjoy your time like anything because you will have 9 का blessing. If you were thinking कि यार कोई vacation ले लेते हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हो, so break लो, वहाँ पे utilize करो अपना पैसा. That is a good kind of पैसा. Remember I said investment वाला पैसा, not expenses. So quality time के लिए any पैसा is investment. If you're thinking of expanding your family, क्या बोला था, masculine, feminine, right? Good time because you have your kids also playing around. ठीक है? So if you want to go and visit your ancestral home, grandparents, parents के यहाँ जाना, excellent energy. So दिल खोल के you can spend your time with your loved ones this year. अब आते हैं नंबर 7 पे. नंबर 7 इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है? और उसको ध्यान लगाना बड़ा पसंद है. साधका इज लाइक ऑल इयर्स ओपन कि यार, एंड दे वांट द मी टाइम, दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. अगर ये मी टाइम नहीं लेते हैं तो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं. अगर ये ज़्यादा लोगों के साथ सोशलाइज करते तो भी डिप्रेशन में जाए, हाय मुझे मी टाइम नहीं मिला. दीज आर दोज पीपल जिनके कमरे में कोई आ जाए अगर 2 घंटे तो ठीक है, उसके बाद भाई निकल, लाइक वॉट, राइट? सो अब 9 इज सेइंग सोशलाइज कर, चिल कर, राइट? नेटवर्क कर. सो द मोर यू डू दैट, द मोर यू कम आउट ऑफ इट. यार आपको मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअल चीज़ें करनी है, करो. गो फॉर स्पिरिचुअल रिट्रीट्स ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इनसाइड योर हाउस. That I can come along with you. सो डू दैट. आप मूवमेंट लाओ अपनी चीज़ों में कि ठीक है आपको मेडिटेट करना है, योगा करना है, जॉइन है योगा स्टूडियो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट एट योर होम, राइट? एंड ट्राई टू फाइंड दैट बैलेंस. थोड़ा लोगों से आप जितना मिलोगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे इस साल. अदरवाइज यू विल बिकम अ सल्क एंड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर. बिकॉज इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन यू विल हैव प्रॉब्लम. एंड नंबर 7 वालों को तो
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की कि यार आई वॉन्ट माई मी टाइम, मुझे अकेला छोड़ दो एंड ऑल ऑफ दैट, एंड द वेरी फाइन, द फाइन, आपको बुरा मानना है आप मानो, आपको सोचना है मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, द वेरी मिसअंडरस्टूड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट. बट नंबर 9 आई विल से यूटिलाइज दैट एनर्जी, वरना लड़ाई हो जाएगी, विस्फोटक लड़ाइयाँ हो जाएंगी, which we don't want. So try to find that middle ground, right? And let's quickly see what the cards have to say. Okay. What if I put this in the edit? उसको अलग से भेज दियो हैप्पी बर्थडे. Okay, I've got the devil. Overall guidance, क्या बोलते हैं भाई कि 7 वाले तो इनसे लोग छूटते नहीं है. They are natural healers. So ये ना they are very susceptible to toxic relationships, parasites. सबके हीलर इन्हीं को बनना है, ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करते हैं. एंड एक ब्रेकअप इनका ऐसा ज़रूर होता है जिसके बाद ये राइज करते हैं, अपने लेसन फाइनली सीखते हैं. सो भाई सीख जाओ, वरना इस साल बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक लड़ाइयाँ की लड़े जा रहे हो, फिर लगता है यार नहीं नहीं बस हो गया अब तो चिल है, फिर से वही लड़ाई होगी, राइट? सो नॉट गेटिंग इन टू दोज टेंडेंसीज कि सबका मसीहा आपको नहीं बनना है. इसमें क्या है दैट जो इनकी चेन्स हैं ढीली है, निकल जाओ ना उस टॉक्सिसिटी से. हर 7 नंबर वाले को बड़ा शौक है, हाँ हाँ सबको मैं ही हील करूँगा या करूँगी, सबके दुखड़े मैं ही सुनूंगा या सुनूंगी. पहले अपने दुखड़ों का ध्यान रख लो, अदरवाइज आप टॉक्सिक चीज़ों में चले जाओगे, पीपल बिकम पैरासाइट्स फॉर यू. ओके, एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी कैजुअल रिलेशनशिप, वो नहीं करना है. सो एनीथिंग कैजुअल, एनीथिंग दैट हैज़ एनीथिंग बट लव, वो वाली चीज़ों में नहीं जाना है, ठीक है? एंड इफ़ यू सिंगल, No casual scenes, Sadhika. No scenes. if you're single, I've got the king of wands, which means कि यार अक्कड़ बनना बंद करो, ठीक है? and be a bit flexible. इसीलिए सिंगल हो. एक तो पास्ट में इतना रहते होगा, द किंग ऑफ wands ना उधर की तरफ देखने में लगा है, राइट? एंड कमिलियन है उसके पास, ना तुम्हें रंग बदलने आते हैं ना तुम अपने पास से बाहर आते हो, तो फिर कैसे बात बनेगी, राइट? एंड गुड चांस दैट यू विल फाइंड समबडी थ्रू योर वर्क. तो इसलिए बोल रही हूँ काम कर ले प्यारे, राइट? बिकॉज प्यार वही मिलेगा. ओके, बट इफ यू कमिटेड, I've got the tower, so I want you to be a bit careful कि बार बार झगड़े नहीं करने. Why? Because आपने अपनी रिलेशनशिप में पीक देखा है और उससे नीचे नहीं जाना है अगर, तो ब्लेम गेम नहीं करना है. बहुत ज़्यादा नेम कॉलिंग की एनर्जी हो सकती है, बहुत सुनाना कि भाई तुमने मुझे ऐसे बोला या तुम्हारी यू नो औकात ही क्या है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. पीपल रियली हिट बिलो द बेल्ट, राइट? एंड मंगल has the potential of making you do that. Number 7 वाले ज़्यादा बोलते नहीं है, बट बोलते हैं तो फिर खराब बोलते हैं ना, because of number 9 then, right? So थोड़ा चुप्पी रखना, एंड यार पहले ही केयरफुल हो जाओ ना, घटिया लोगों के साथ आपको चिल ही नहीं करना है. So that is going to help you. Otherwise, if you're committed, then I will say यार इस साल just lay low. बिकॉज एंड डोंट एक्सपेक्ट कि हनीमून फेज में वापस चले जाओगे. पीक देख लिया रिलेशनशिप का, मूव ऑन, कि रिलेशनशिप विल हैव इट्स ओन मेच्योरिटी फेज. उसमें नहीं तो वापस जाते रहोगे कि नहीं वैसे वाले दिन चाहिए, तो ब्रेकअप हो सकता है. सो लेट्स नॉट गो देयर. नाउ कमिंग टू नंबर 8, राधिका, सो एक्साइटेड. अगर आपका मूलांक नंबर 8 है, यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल, ठीक है? बिकॉज सैटर्न है रूलर, शनिदेव, ठीक है? नंबर 8 के वो बोलते भाई सोच समझ के कर. नंबर 9 बोलते भाई कर डाल, सोचेंगे बाद में. सो दैट कॉन्फ्लिक्ट कैन बी देयर कि यार काम पहले मैं सोच लूँ, थोड़ा डिले कर लूँ, मेरे को लॉन्ग टर्म पिक्चर दिखे. नंबर 9 बोलते हैं यार जल्दी कर, इम्पल्स से, तभी बोला 5 सेकेंड रूल. सो दैट कॉन्फ्लिक्ट कैन बी देयर इन योर हेड. दैट्स नंबर 1. Excellent year for these people to invest in properties. Real estate में घुसने का, because number 8 also helps in real estate, number 9 also. ठीक है? Then be very nice to your brothers, you guys specifically, to your brothers and to your husbands, because they are a real कारक of मंगल. ठीक है? एंड आप यू शुड ट्राई टू फाइंड द बैलेंस, बिकॉज शनि क्या है, शने शने चलना पसंद करते हैं एंड डिसिप्लिन पसंद करते हैं. नंबर 9 इज लाइक काम करते रहो, 24/7 काम करते रहो, राइट? सो नंबर 8 पीपल नीड टू फाइंड दैट बैलेंस कि बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट भी ना करें, गिव अप ना करें. यू विल फाइंड दैट करेज फाइनली कि आप लास्ट लेग पे जब होते हो ना नंबर 8 वाले, तब भी सोचते हो कि यार भाड़ में जाए, मेरे लिए नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि दूसरों को रिजल्ट अगर इतनी मेहनत में मिलता है, नंबर 8 वालों को बेचारों को इतनी मेहनत करके मिलता है. मतलब प्रॉब्लम है दूसरे के पास गारंटी नहीं है रिजल्ट की. नंबर 8 को एटलीस्ट ये तो ब्लेसिंग है कि भाई मेहनत करेगा तो रिजल्ट मिलेगा. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि नंबर 9 आपसे कराएगा कि यार जल्दी जल्दी कर ले, या टेम्प्टेड हो गया आप कि यू नो अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज ट्राई करना. नंबर 8 योर रूलर इज कि यार दूसरा कुछ भी अनएथिकल कर जाए, इट्स फाइन. नंबर 8 वाले को माफ़ी नहीं मिलती है. सो नंबर 9 कैन टेम्प्ट यू इनटू थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर योर हाईएस्ट गुड.
तो उस चीज़ का ध्यान रखना है. एंड प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो तो खरीदो, सेल करने की सोच रहे हो तो आप सेल कर सकते हो, रियल एस्टेट में हो सो यू डू एक्सेलेंट. सो एन एक्सेलेंट ईयर ओवरऑल अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखो. अदरवाइज यू माइट बी लाइक यार ये साल कहाँ जा रहा है, प्लीज़ हेल्प करो. Right. ठीक है, लेट्स क्विकली सी व्हाट द कार्ड्स हैव टू से. It's not very chotu. It's not a content to put up with. ओके, सो आई गॉट द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. तो क्या बोला था कि यार थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, एकदम तैश में काम नहीं करना है. ओके, सो इरिस्पेक्टिव दूसरे कर रहे हैं करने दो, दूसरे भागते हुए दिखेंगे आपको. यू नीड टू फाइंड दैट बैलेंस बिकॉज आपका लॉर्ड इज शनि. ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू यूटिलाइज योर माइंड वेरी वेल, द लॉजिक, इंटेलेक्ट. आर्ट वालों का ना दिमाग फाइनेंस में, मनी में एक्सेलेंट चलता है. तो आपका अगर कुछ भी आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सोच रहे थे या आपका काम ही उससे रिलेटेड है, बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, यू वांट टू डू समथिंग ऑन द साइड, प्रमोशन मांगने की सोच रहे हो, एक्सेलेंट ईयर फॉर दैट. बट रिमेंबर दैट यू नीड टू डू लॉजिकल कॉन्वर्सेशंस, अटैक द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन, जो आर्ट वालों को बहुत पसंद होता है. तुमने ऐसे किया, तुमने किया, एंड पीपल विल लाइक यार पॉइंट पे आ. क्यों? क्योंकि मंगल आपको एनर्जी दे रहा है कि हाँ और बोल और सुना, राइट. बट यू नीड टू यूटिलाइज योर हेड वेल. ठीक है, सो दैट विल हेल्प यू. नाउ इफ यू आर सिंगल, अगेन आई गॉट द 5 of cups, big sulk, no. So why again the same guidance कि 1-8 number people they don't like communicating, अंदर अंदर रखना. वही 9 वाला वही कराएगा ना, भरे जा रहे हो, and they're very judgmental. They will keep a poker face and judge you like crazy, and that will happen subconsciously. They won't put in an effort कि आपको पता भी नहीं चलेगा उन्होंने क्या क्या नोटिस किया. यू गाइस आफ्टर आई एम गॉन शील बी लाइक ये नोटिस किया था, ऐसे भी था, ये भी था, राइट. सो यार उसको थोड़ा कम कर दो, थोड़ा मतलब आदमी को ब्रीदिंग स्पेस दो, राइट. दैट इज व्हाई यू सिंगल. तो वो कंटिन्यूड रखोगे अगर अपना पैटर्न, ये प्रॉब्लम हुई थी, इतना जज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी. मेरे को वो वाला मीम याद आ रहा है, धोती खोल रही है. Couldn't be truer. Yes. And if you're committed, चलो भाई शनि देव ने and मंगल भगवान ने आपकी लाज रख ली. I've got the sun card, okay. एनर्जी आप यूटिलाइज कर सकते हो बेड प्लेजर्स में भी बिकॉज देयर इज अ किड. ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम इंट्यूटिवली गेटिंग दैट यार नंबर 8 यू कैन लेट योरसेल्फ लूज बिकॉज नंबर 8 एक्चुअली न्यूमरोलॉजी वाइज दे लैक बेड प्लेजर्स. दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दैट फॉर देम कि मंगल will give you the right sort of energy and you need a balance in life. You go, girls. Yes, committed हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि boss your sex life has to suffer, right? And sometimes that helps you with the compatibility. That will also help you burn some real calories, which Mangal requires, and maybe that's the best workout for you. So yeah, number 8, इतना भी साधु संत होने की जरूरत नहीं है. Judge कम करो and just be in the moment. Okay, cool. Now coming to number 9, boss, you have your ruler coming in and supporting you. Number 9 वालों को वैसे ही वोल्केनिक गुस्से की मैंने बात करी है. बहुत ज़्यादा दिलदार होते हैं, वेरी ह्यूमैनिटेरियन. ठीक है, मतलब अपने लव्ड वंस के लिए डू और डाई, एंड खुद की जेब में 10 रुपये हो दूसरे को 50 दे देंगे, या अपना नहीं सोचते हैं. सो यू विल फाइंड योर सेल्फ स्ट्रगलिंग विद दैट, ईदर लॉट ऑफ अग्रेशन और यू विल बी लाइक यू नो कलेजा भी दे दूंगा मैं अपना, किडनी भी बेच दूंगा अपनी. डोंट डू दैट. वाई? बिकॉज अगेन नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर हेल्प एंड आप अंदर से खाली हो जाते हो ना. नंबर 9 की खास बात क्या है? देयर लाइक कोकोनट, बाहर से वेरी स्ट्रॉन्ग, अंदर से उनको भी प्यार चाहिए, राइट. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए दिल है मुश्किल में लीजा हार्ट, डैम इट, आवर हार्ट. सो एग्जैक्टली दैट एनर्जी. तो फिर रोते रोते मत आना कि भाई तुम सल्क करते रहोगे, फूटते रहोगे, पुरानी बातें याद रखोगे, एंड दे टेंड टू गेट वेरी अब्यूसिव. सो बी वेरी केयरफुल अराउंड दैट कि मैंने इतना किया, ये किया, एंड 2-3-5 गालियाँ, एंड तुम तो हो ही खराब, एंड ऑल ऑफ दैट. And again, anything that is travel related is good for them. You should travel for your work. आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हो. आपको अगर कोई बिजनेस ट्रैवल मतलब बहुत टाइम से पेंडिंग था, मे बी यू वर वांटिंग टू सोर्स, फैशन ब्रांड चलाना है मुझे, राइट. सो आपको सोर्सिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, सो आप वो भी कर सकते हो. ठीक है, एक्सेलेंट ईयर फॉर प्रॉपर्टीज. आई डोंट थिंक आई शुड से दैट अगेन एंड अगेन 9 वालों के लिए. बट अग्रेशन का इनको तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, वैसे ही बहुत है और एम्पलीफाई हो जाएगा. इनके लिए आई विल डेफिनेटली से कि जिम जाके लोहे उठा लो, तुम्हारे लिए योगा वोगा से कुछ नहीं होने वाला. एंड आई विल से कि यार सुबह वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो शाम को कार्डियो कर लो, पड़े रहने जिम में तो पड़े रहो, वहीं से काम कर लो, बट प्लीज़ वर्कआउट, राइट. स्वेट इट आउट. जितना पसीना बहेगा उतना ही हसीना टाइप circumstances. Quickly let's pull out for them last Yes. spread कि नंबर 9 वालों के लिए क्या है.
good thing is he probably won't be my boss. Why? Okay, so for the overall year, I've got the moon energy. ठीक है, सो वही ना कोकोनट बिग टाइम सल्क, उसके बाद दिखाएंगे ये यार हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो दुनिया में कोई आके इनके कान में कुछ डाल के जाएगा तो प्ले तो बहुत करती है इनके साथ, इनके दिमाग में चीज़ें, राइट. सो दैट एंड गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने का बहुत मन करेगा. यू मे हैव द वर्स्ट एक्स कमिंग बैक, बहुत मन करेगा. अब मैं तुझे बताता हूँ क्यों, क्योंकि मंगल की एनर्जी बहुत है. सो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने का बहुत मन करेगा. सेकेंड, दुनिया की कम सुननी है, अपनी ज़्यादा सुननी है. तैश में लड़ाई नहीं करनी है. जो ये होता है ना कि यार मेरी तरफ से ये लड़ेगा एंड दे लाइक हाँ मैं तो हूँ ही दानवीर कर्ण, मैं बताता हूँ. नहीं, दूसरों के फट्टों में टांग नहीं अड़ानी इन द टिपिकल नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज. एंड अगर आप सिंगल हो, एक्सलेंट टाइम फॉर यू. लर्न टू गिव योर हार्ट आउट. रेसिप्रोकेशन की फिक्र मत करो बिकॉज रेसिप्रोकेशन बहुत आएगा. अनकंडीशनल लव देने में बिलीव करो, वैसे ही आपको बहुत आता है देना. बट डू नॉट थिंक यार कहाँ से क्या आएगा, जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते वहाँ से आपका पार्टनर निकल के आएगा. सो जस्ट बिलीव इन गिविंग अनकंडीशनल लव एंड डूइंग योर कर्मा. ठीक है, सो इतना कोई चेकलिस्ट आइटम नहीं रखना और ज़्यादा सोचना नहीं है. Right. एंड इंश्योर दैट यू बीइंग ट्रांसपेरेंट विद द पर्सन fully. So that is very important because ये जल्दी से खुलते नहीं है 9 नंबर वाले. Okay, and if you're committed, I've got the 4 of Pentacles. Let go of your control energy. ठीक है, सबको पता है, आपको पता है सबके हित के लिए क्या है, बट प्लीज़ रिस्ट्रिक्ट करना बंद करो लोगों को. अपनी फ्रस्ट्रेशन लोगों के ऊपर कंट्रोल डाल के तो नहीं निकाल सकते. दैट इज़ देयर. ओके, एंड अगर भाई बीवी आके या पति आके बोल रहे हैं थोड़ा खर्चा कर ले, बहुत कमा लिया, चल ले, तो चले जाना. राइट, बहुत पैसा है आपके पास एंड आई सी यू बिल्डिंग ब्यूटिफुल प्रॉपर्टीज. ओके, सो अपने नाम पे करानी थी अगर और खरीदनी थी, एक्सीलेंट ईयर फॉर दैट. सो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो करना है करो एंड पैसा बहुत है तो थोड़ा एंजॉय भी कर लो एंड लेट गो ऑफ द कंट्रोल एनर्जी. ठीक है, लेट योर सेल्फ लूज. सिर्फ आपकी डेफिनेशन हमेशा सही नहीं हो सकती लव लाइफ वाइज. कूल. सो फाइनली वी आर डन विद दिस. It was a very informative session, and in fact, of course, you know, you've given us a very great perspective into what 2025 could be and also what we can make it happen. Yeah, Right? that's very I mean, important. one is ke kya ho sakta hai, but aap kya kar sakte ho. So, you know, first of all, thank you so much for Most that. It was lovely talking to you. Before we go, do you have some closing thoughts for people who believe in it, people who don't believe in it, just people in general? So my thought will be that try तो करके देखो because I am a living example of it. I used to laugh at people कि यार कैसे मान सकते हो इतना पढ़े लिखे हो के भी ये सब, only to realize that maybe इतनी awareness है नहीं because people who really have that talent, जिनको आते हैं ये tools, वो सोशल मीडिया पे इतना अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर रहे होते. उनके पास काम होता है, उनका वर्ड ऑफ माउथ होता है एंड एवरीथिंग. एंड द बैड पार्ट इज कि स्कैम भी बहुत ज़्यादा इसी इंडस्ट्री में है. सो आई अंडरस्टैंड दैट यू नो लोगों का फ़ायदा बहुत उठाया जाता है बिकॉज वल्नरेबिलिटी है. माई सजेशन इज़ यार सीख लो ना, या तो ट्राई कर लो या सीख लो. ठीक है, बट इफ़ यू फील कॉल्ड आउट तभी करना. एंड इफ़ यू फील कॉल्ड आउट तो आपको करना ज़रूर चाहिए. एंड रिमेंबर द कर्मा थ्योरी. कोई रेमेडी, कोई ये ताला जापी थिंग, दैट वशीकरण, ऑल, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प. देयर इज अ डिवाइन पावर हु इज़ एक्चुअली कीपिंग योर हिसाब किताब. सो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं गंगा नहा लूँगी एंड सब ठीक हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है. सो ऑलवेज बिलीव कि पास्ट लाइफ का कर्मा होता है एंड अभी भी आप जो क्रियामान कर्मा कर रहे हो दैट इज़ सुपीरियर. एंड वॉट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, you just need to accept it and maneuver around it instead of sulking about it. So good. Like, I really feel this is the kind of guidance people need to get. Like, you know, abhi na we're, I know, living in a very fantasy world. ये कर लो, ये हो जाएगा, ये कर लो. आप क्या हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, none of that matters. Just do this and you'll get this. So I think this is the right way to guide people, that ultimately who you are, what you do really matters. तो कर्म तो कर्म है. So thank you. I mean, that's very nice. Yeah, and for everybody watching this episode, please comment below. Let us know what you thought about it. You can also comment below with your numbers and let us know if you thought the predictions were right for you or not. And we'd love to, you know, have
maybe another session on it very soon. Lovely, especially in December 2025 for sure. But For sure. happy to do it before I look at her. She's doing challenge. नहीं मिलाना तो तेरी गर्दन पकड़ूंगी मैं. She has that body language. Like, okay, dude, fine. For sure. Thank you for having me. You've been thanking me so much. So I was waiting for that opportunity. Thank you so much. जितना अवेयरनेस हम क्रिएट कर पाएँ इस बारे में, आई थिंक बहुत लोग ही हेल्प कर पाएंगे, बिकॉज आई सी लोग काफ़ी सफ़र करते हैं व्हेन आई सी द क्लाइंट्स, एंड ऑल ऑफ अस हैज़ फेस दैट कभी ना कभी, तो कि यार एक कोई मुझे मिल जाता, डूबते को तिनके का सहारा. आपको निकलना बुरे वक्त से खुद ही होता है. इट्स जस्ट दैट यू नीड दैट पैट ऑन द बैक, दैट यू That's नो true. Yeah. कर लोगे, एंड कैसे कर लोगे, दैट्स ऑल. करना तो आपको खुद ही है, बिकॉज इट इज़ योर कर्मा एट द एंड ऑफ द डे. Lovely. Thank you. Okay.